स्ट्रीट फूड वर्सेस पैकेज फूड, क्या खा सकते हैं क्या नहीं खा सकते हैं? मेरे लिए दोनों ही कचरा है. दोनों ही कचरा है. कि ये सब पनीर. सुन के थोड़ी उल्टी सी आ रही है कि मैं क्या क्या खाता था. बेसिकली अगर मैं बहुत सारा सैचुरेटेड फैट खा रहा हूँ बर्गर के टर्म्स में, पिज़्ज़ा वगैरह, एंड उसकी वजह से ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाता है, आपका हार्ट खून नहीं दे पाता है अलग अलग बॉडी पार्ट्स में, जिसकी वजह से हार्ट अटैक और ऐसी इश्यूज होते हैं. खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, ये क्या खाने है के ये? साथ भी पानी नहीं पीना चाहिए. और बाद भी नहीं पीना चाहिए, ये सच है. ये सच है. कैन और डाइट इन हाई प्रोसेस फूड शुगर नेगेटिवली इम्पैक्ट योर सेक्सुअल हेल्थ? आम खा रहा हूँ और उसको जूस में कन्वर्ट कर देते तो सारा फाइबर चला जाता है. Exactly. Acidic carbon dioxide leaches out calcium from your bones. People having too much of Diet Coke has chances of suffering from osteoporosis. मेरे तो कितने दोस्त होने वाले हैं, मैं तो सोच रहा हूँ. न्यूट्रिशन आई थिंक एक ऐसी चीज़ है जो हमें बचपन में पढ़ाई जाती है, क्लास 1 to 3 में मुझे याद है फूड पिरामिड और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ये पढ़ाए गए थे. बट उसके बाद एज लाइफ हैपन्स हम सब भूल जाते हैं, एंड हमें बस ये कार्ब्स प्रोटीन थोड़ा थोड़ा याद रहता है, रील्स देख के थोड़ा समझ में आता है, बट उसके अलावा वी डोंट हैव एनी कॉन्टेक्स्ट और लाइक रिमेम्बरेंस ऑफ दैट मेमोरी. सो एक बार एक टच डाउन करते हैं कि किस टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, उसके अंदर कार्ब्स प्रोटीन फैट इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, एंड देन लाइक अ डीप डाइव इनटू इट. Done. So, जब हम फूड की बात करते हैं, so we Indians look at food as दाल चावल रोटी सब्जी. हाँ. Nobody looks at it as carbs, proteins, fats. Fats may be good fats, bad fats. Then vitamins. So the macros when we talk about, they are carbs, proteins, fats. And to be honest, even water becomes a part of that macro. And micros की बात करें, micronutrients, why are they called micro? Because they are needed in small amount. तो वो vitamins है, minerals है. Then there are few functional food. I would want to add functional food also as a part of micronutrient, because that all this together can help us not only maintain our health, but it can also help us in boosting our metabolism. Just to give you an example, when I had studied nutrition, ऐसे था कि carbohydrate जो हमें रोटी से, राइस से या फिर शुगर से मिलता है या फ्रूट से मिलता है, that has to be 60 to 65%. But our lifestyle became so much, like I always ended up saying that India is a carb-rich country, and that is why prevalence of diabetes in us is more. So my take is, when you are having macros, carbs, proteins, and fats, ensure that it's nicely divided. Like carbs should be 50% coming from rice or roti. Protein should be at least 20 to 25%, or at times I calculate basis client's requirement, which will be 0.8 to 1 gram to 1.5 gram per kg body weight. And fats, like there are two types. Good fats coming from nuts and seeds, which I call it as invisible fat, and then there is visible fat coming from oil, मतलब normal तेल जो हम लोग यूज करते हैं, बटर है या फिर घी है, कोकोनट ऑयल है, तो all that will account to your macros. But we are missing out on water here. Water plays a very crucial role when it comes to metabolism. So drinking around at least 2.5 to 3 liters water basis our requirement, activity, the weather in which we stay, all that becomes a part of your macros. Coming to micros उसको इसलिए बोलते हैं because they are मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में फिर होता क्या क्या? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में अपने पास फैट हो गया, कार्ब्स हो गया, प्रोटीन हो गया, and water. And water. Yes. So 4 things. Right. ठीक है. And माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, करेक्ट? Yes. हाँ, उसमें क्या क्या होता है? So vitamins and minerals की बात करें हम तो there are like fat soluble vitamins and water soluble vitamins. So fat soluble vitamins we'll get it through fruits, green leafy vegetables, etc. Likewise, फैट सोल्यूबल क्या होता है? Fat soluble like vitamin A, जो हमें कैरेट है, मैंगोज है, पपाया है, ऑल ऑरेंज एंड रेड येलो वेजिटेबल्स में मिल जाएंगे. देन विटामिन डी, which is a sunshine vitamin. So ideally we need to expose ourselves to sun to get that vitamin D. But our lifestyle is such that we are always in AC confined. So globally people are deficient in vitamin D. Vitamin D. काफी Indians भी vitamin D की कमी होती है. Everyone. In fact, if you go and check yours or kids as well, all of them are like सबका vitamin D कम होता है. तो better to get the levels checked. If you can expose yourself to sunlight, great. But you need to do it like 45 minutes daily to have that vitamin D levels only for that day. उतना ही कोटा बनता है अपनी बॉडी में. तो एक्सेस विटामिन डी या ज्यादा चाहिए तो you need to supplement your body.
ठीक है, तो Okay. माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में विटामिन्स आते हैं हाँ. सारे आपके, और मिनरल्स होते हैं. मिनरल्स होते हैं, जैसे मिनरल्स में जिंक है, बहुत इंपॉर्टेंट है गट हेल्थ के लिए. सेलेनियम है, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर थायराइड, फॉर योर लिवर, फॉर हार्मोन्स. लाइक सेलेनियम इज वन माइक्रोन्यूट्रिएंट जो हमको चाहिए ही चाहिए. नेक्स्ट इज मैग्नीशियम. लाइक यू नो इट्स अ लाइक सब लोग मैग्नीशियम आजकल करने लगे, बट इट इज अ विटामिन विच मिनरल विच एक्चुअली नीड्स इम्पोर्टेंस. आप सो नहीं पा रहे हो, यू नो यू आर डेफिशिएंट इन मैग्नीशियम. आपका ब्लड शुगर लेवल्स चेक ठीक से नहीं है, यू मे बी डेफिशिएंट इन मैग्नीशियम. यू गेट क्रैम्प, बॉडी एक, यू फील टायर्ड, यू आर डेफिशिएंट इन मैग्नीशियम. You are stressed, you will become deficient in magnesium. So magnesium is a very crucial vitamin. और जो हम कार्ब्स खाते हैं ना, वो कार्ब्स को मेटाबोलाइज करने के लिए मैग्नीशियम चाहिए. सोने के लिए मैग्नीशियम चाहिए. अब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में जो कार्ब्स, फैट और प्रोटीन की बात करी, इनका क्या इम्पोर्टेंस है? जैसे आपने मिनरल्स का बता दिया, राइट. कार्ब्स किसके लिए यूज होता है, प्रोटीन किसके लिए यूज होता है, फैट किसके लिए यूज होता है? So honestly, the ideal definition is carbs is to give us energy. हाँ. Okay. Protein is for muscles. Fat, good fats are needed not only for absorption of vitamins, but like you know, fats also help in boosting your immunity. Like good fats like omega-3, omega-9, omega-6 for that matter, alpha lipoic acid, ये सब आपको आपकी बॉडी को चाहिए फॉर इट्स लाइक जो हम ल्यूब्रिकेंट ऑयल नहीं डालते हैं कार में, सो दैट इट रन्स विदाउट फ्रिक्शन, अच्छे से फंक्शन करेगा. सो फैट्स आर लाइक दैट. So not only they act as a lubricant, but they are also needed for boosting your energy, metabolism. And in fact, for some critical conditions like brain related, we use fat in higher proportion compared to carbs because they are good for your brain omega-3 health. डायरेक्ट ब्रेन की Absolutely. कैपेसिटी के लिए हेल्प करता है ना? Yes, yes. So I have so many cases wherein when people were their brain was impacted, yeah, epilepsy के, like I've handled many epilepsy cases. तो उसमें just by giving them omega-3, we had seen an improvement in their cognitive activity as well. So yes, good fats चाहिए. And bad fats और saturated fats क्या होते हैं? Bad fats, see, saturated fat in small amount is not bad. Okay, the amount that we consume, जैसे लाड है, मार्जरीन है, मेयोनीज है, जो प्रोसेस्ड है, right, all those are high in saturated fats. हमारी बॉडी को उतनी जरूरत नहीं है, बिकॉज वी डोंट नीड इट. व्हाट हैपेंस इज आवर बॉडी कन्वर्ट्स इट इनटू एडिपोसाइट्स एंड देन स्टोर्स इट इनटू योर बॉडी. इट कैन बी स्टोर्ड एज अ सबक्यूटेनियस फैट और इट कैन बी स्टोर्ड एज अ विसरल फैट. तो जितना विसरल फैट बढ़ेगा, आपका बेली बढ़ेगा, यू मे एंड अप सफरिंग, you may end up having insulin resistance. So आपकी बॉडी कार्ब्स अच्छे से मेटाबोलाइज नहीं कर पाएगी. आपको पूरा दिन थकान रहेगी एंड आपको पूरा दिन कार्ब की क्रेविंग अगर आप सैचुरेटेड फैट ज्यादा लेते हो. Yes, not only about saturated fat, but this is your overall lifestyle. It also impacts your liver. It impacts your gallbladder. So everything in moderation is good. Trust me, if you have it in moderation, it's good. Like घी खाओ minimum. सैचुरेटेड फैट जो इतना खाने में होता है, प्रोसेस फूड में होता है, right, उससे क्या इम्पैक्ट होता है? It directly impacts your heart. To be honest, जो हमारे जो आर्टरीज और वेन्स होते हैं ना, द वेसल्स दैट सप्लाई ब्लड, वहां पे फैट डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है. वी कॉल दैट एज एथेरोस्क्लेरोसिस, बिकॉज ऑफ विच ब्लड ठीक से पर्टिकुलर ऑर्गन में फ्लो नहीं हो पाता है. करेक्ट. ओके, प्लस व्हेन दिस एथेरोस्क्लेरोसिस हैपेंस, there are times it's going to impact your heart health, and there are times it's going to impact your blood pressure. तो फॉर मेरी अंडरस्टैंडिंग मुझे करेक्ट करना, बेसिकली अगर मैं बहुत सारा सैचुरेटेड फैट खा रहा हूँ बर्गर के टर्म्स में, पिज्जा व्हाटएवर, उसकी वजह से अगर ये मेरी हार्ट की नली है, यहाँ पे वो फैट जमा होने लग जाता है, जिसकी वजह से खून जो पास हो रहा है वो पतली हो जाती है, लाइक वो गैप पतला हो जाता है, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाता है, आपका हार्ट खून नहीं दे पाता है अलग अलग बॉडी पार्ट्स में, जिसकी वजह से हार्ट अटैक और ऐसे इश्यूज हो सकते हैं. एंड इट्स नॉट ओनली योर हार्ट इज गेटिंग इम्पैक्टेड, आपका किडनी भी इम्पैक्ट होगा, बिकॉज किडनी फिल्टर्स द ब्लड. योर थायराइड ग्लैंड विल गेट इम्पैक्टेड, बिकॉज थायराइड कंट्रोल्स योर एंटायर बॉडी. सो ऑल इन ऑल आपका पूरा बॉडी इम्पैक्ट होता है. एंड ऑल दिस when we talk about heart, kidney, etc., it's controlled by your brain. It releases various neurotransmitters, etc., to control all this. So all in all everything gets impacted. आप देखना कभी अगर हाई ब्लड प्रेशर वाला पेशेंट होगा ना, वो जनरली गुस्से वाला होगा. क्यों ऐसा क्यों होता है? Because like their body is not getting that exact or enough or
adequate blood at that particular point. I mean, this is again my observation exactly, but I have seen that people who have high blood pressure, it impacts their mood, or probably they are too Irritated रहते हैं। irritated. Yes, हाँ, because गुस्सा जल्दी आ जाता है। ब्लड का एक फंक्शन है ना कि आपके बॉडी को ऑक्सीजन देता है, आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स देता है टू ईच एंड एवरी सेल, which also gets impacted. एंड सैचुरेटेड फैट किस किस टाइप के फूड आइटम्स में होते हैं कॉमनली जो हम सब खाते हैं? Mayonnaise, cheese, even paneer for that matter. So there are different types of paneer we get. Okay, paneer is nothing but casein, a good protein, but it also has like, अगर आप buffalo milk का पनीर लो तो वो it will be rich in saturated fat. So for me, saturated fat comes from cow, buffalo milk का घी. It comes from buffalo milk जो होता है ना, I'll tell you, 85 ml of buffalo milk will have enough of saturated fat. So that is why we should avoid buffalo milk. We should avoid lard. We should avoid margarine. We should avoid mayonnaise and cheese also. See, अगर आपको खाना है मोस्टली फास्ट फूड में होता है ना जो Yes, मैकडॉनल्ड्स टाइप yes. जगह पे बहुत सैचुरेटेड फैट डाल के रखते हैं। Yes, बट वो it's कौन से more- इंग्रेडिएंट से आता है? सॉल्ट से आता है, वो तेल से आता है? Saturated fat. It's like cheese है, तो it's coming from milk, right? Milk में से जो प्रोटीन निकाला है that. Then mayonnaise है, mayonnaise तेल से बनता है. हाँ। Okay, lard and अच्छा, margarine. तेल से बनता है मेयोनीज? हाँ, so ideally तेल को मिल्क के साथ पल्स करते हैं. हाँ। नॉन वेजिटेरियन के लिए उसमें अंडा भी डालते हैं, वेजिटेरियंस का विदाउट अंडे वाला होता है. ओह, So equal amount of milk and equal amount of oil is used. इसलिए उतना गीला गीला सा वो Yes. स्मूथ जाता है वो। Yes. Then cashews, like nowadays people are going vegan. तो वो लोग cashew से मेयोनीज बनाते हैं. Cashew is also end of the day high in saturated fat. अच्छा। आप 5-6 खा लो अच्छा है, लेकिन if you're eating beyond, it's not good. So margarine जो है, जो मार्जिन क्या होता है? margarine is a type of fat. Lard is also a type of fat which is procured from animals, which is high in saturated fat. और in fact, if you are a non-vegetarian, तो आपने कभी मटन, पोक, बीफ वो सब देखा होगा, तो उसमें एक सफ़ेद लेयर होता है. That is nothing but your saturated fat. And when you cook such saturated fat, it gets converted into trans fat, जो हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं, and it's not good at all. ट्रांस फैट क्या होता है? ये भी बहुत मैंने सुना है कि हाँ, ट्रांस फैट अगर आपके trans- बॉडी में बहुत है तो खराब हो जाता है। फैट्स जो होते हैं ना, दे हैव अ पर्टिकुलर केमिकल कंपोजिशन. हाँ। ओके, सी यहाँ पे, एच यहाँ पे, दैट्स हाउ फैट्स का कंपोजिशन होता है. तो व्हेन यू हीट देम एट हायर टेम्परेचर, वो पूरा जो अलाइनमेंट है ना वो चेंज हो जाता है. तो रहता वही फैट है, लेकिन बिकॉज ऑफ चेंज इन अलाइनमेंट इट्स मोर हार्मफुल टू अस and it has more detrimental impact. Like थोड़ा सा saturated fat I would need it for कुछ नहीं, but excess है तो मुझे नहीं चाहिए. और ट्रांस फैट क्या करता है? Trans fat makes your body, it's like it's inflammatory in nature. इन्फ्लेमेटरी मतलब इन्फ्लेमेशन एज आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन. So ideally, okay, inflammation is a sign of your immunity working to protect you. Okay, but because of our lifestyle, because of exposure to pollutants, our thought process and the kind of food we eat, वो जो inflammatory markers है ना वो हमेशा high पे रहते हैं, because our body feels that there is some kind of invasion going to happen. Okay, so cytokines release होते हैं ideally. बट इन्फ्लेमेशन भी गरम जो लगता है वो होता है? नहीं, क्या होता है? कभी कभी गर्म लगता है, that can be considered as inflammation, but inflammation internal है, you are not going to experience it. अच्छा। Only when you get blood test done, you may realize that your CRP, that is C-reactive protein, is high, which means that there is inflammation in your body. तो उसका मतलब क्या हो रहा है? अगर इन्फ्लेमेशन है तो बार बार मेरा ब्लड लड़ाई कर रहा है या क्या हो so रहा है? your immunity is active. वो हर समय मतलब गार्ड में रहता है। Yes, it's on guard. एक Yes. कंट्री है, उसकी आर्मी है, वो आर्मी हमेशा एक्टिव ही खड़ी हुई है तो इसलिए थक जाती है वो, And वैसा है। after a point थक जाती है. Plus, this inflammation is not good for us if it is chronic and if it is for a long time, because it can lead to पूरा hormonal imbalance. It can cause cancer in many cases. It can lead to diabetes. It can impact your heart health. Ischemic heart disease है, या फिर ऐसे कोई like kidney conditions, it impacts your overall function. It impacts your thyroid gland also. समझ गया। तो ठीक है, that's तो why. मतलब हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अलग लेने हैं, अलग खाने से लेने हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमें अलग खाने से लेने Yes, so if you ask me क्या खाना चाहिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के लिए, तो I would say fresh fruits, fresh vegetables, ताजे ताजे बने हुए आप खाओ. Like fruit अभी कट किया अभी खा लो. Fruits are rich in micronutrients.
ओके, एंड दे आर ऑल्सो गुड सोर्स ऑफ सोल्यूबल फाइबर. हम्म फिर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, या इनफैक्ट फॉर दैट मैटर सारे वेजिटेबल्स जो है ना, दे हैव माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. विटामिन ए, डी, ई के होता है, बी वाटर सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं. आप स्प्राउट्स खाओ, उसमें बहुत अच्छे से वाटर सोल्यूबल विटामिन्स मिल जाएंगे. फ्रूट्स में वाटर और सोल्यूबल, स्प्राउट्स में प्रोटीन भी होता है. स्प्राउट्स में यस वेजिटेरियन प्रोटीन होता है, बट वो कंप्लीट प्रोटीन नहीं है. हम्म होगा लाइक 30 grams of sprouts will give you 7 gram of protein, but it's not a complete protein. Got it. So you have to complement it with some amount of carbs. ठीक है. तो अगर हम अपनी डे टू डे लाइफ में देखें, मेरे जितने भी दोस्त हो गए एंड उन लोग का अगर मैं लंच देखूँ डिनर देखूँ, उनके उसमें क्या रहता है? मोस्टली अगर कोई राइस ईटर है तो 50-60% राइस रहता है, एक Right. दाल वाल रहता है, थोड़ी सी सब्जी रहती है, बट मोस्टली दाल और राइस डोमिनेटेड रहता है. नाउ इज दिस द आइडियल मील, या एक आइडियल मील कैसी दिखनी चाहिए? नाउ दैट हमें समझ में आ गया माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो होना चाहिए, क्या हर मील में सब कुछ होना चाहिए? कैसे होता है? So for me, the concept of balanced meal means fiber होना चाहिए. Fiber हमको सैलेड से मिलेगा. फाइबर कहाँ से? अब ये फाइबर माइक्रो होता है या माइक्रो होता है? It's not macro, it's not micro. हम्म It's a component of vegetable. Carbs के बाद fiber is a component. Okay. Now you need fiber because fiber के बिना आपके gut bacteria को food नहीं मिलेगा. तो फाइबर के बिना गट बैक्टीरिया को फूड नहीं मिलेगा. हाँ, fiber is food to gut bacteria. Okay, Okay. not all kind of fiber, but Hmm. some amount of fiber we call it और as गट prebiotic. बैक्टीरिया को फूड क्यों देना है? उसका क्या आपके significance है? बॉडी में जो गट बैक्टीरियाज है, Hmm. दैट प्ले अ क्रूशियल रोल इन योर मेटाबॉलिज्म. आयुष, आपने कभी नोटिस किया है कि खाने के बाद भी डिस्पाइट ऑफ हैविंग अ हेफ्टी मील हम्म you have that sugar craving or dessert craving? हाँ. That's because of the bad bacteria. अच्छा. Or it could be because you did not have balanced meal. So balanced meal के लिए फाइबर होना चाहिए. माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आप फाइबर के साथ ही मिल जाएंगे. जैसे आपने वेजिटेबल्स डाले, आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी मिल गए, फाइबर भी मिल गया. फाइबर के बाद प्रोटीन होना चाहिए. हम्म प्रोटीन में लाइक फॉर वेजिटेरियंस इट कैन बी दाल और पल्सेस और लेग्यूम्स और लेंटिल्स. लेंटिल्स क्या होता है? लेंटिल्स टाइप हिंदी ऑफ में? दाल. दाल ही होता है. अच्छा. या दाल ही बोल सकते हैं. हम्म Then carbs होना चाहिए. But that is not all. I mean, as a nutritionist, I would also prefer a source of probiotic. हम्म So you can add kefir, you can add kombucha. We Indians have this habit of having buttermilk. That is also a probiotic. And honestly, घर का बना ताजा pickle is also achar is also a good source of probiotic. The problem with achar is कि we make it like loaded with salt, loaded with sugar, and loaded with oil. That's not correct. अगर आप ताजा ताजा अचार बनाओ, like sauerkraut, it's an achar. You can have that. आप fermented salsa बनाओ, you can have that. So that's what a balanced meal is, but you have to be mindful of proportion of carbs and कितना proteins. प्रपोर्शन होना चाहिए? So I honestly feel कि देखो, I'll just give you an example कि अगर आप एक रोटी खाओगे ना, आपको 21 ग्राम कार्ब मिलेगा, लाइक एक पाम साइज रोटी. ओके, एंड 21 grams के कंपेयर में you are just getting 2.5 grams of protein only. I mean, sorry, yeah, 2.5 grams of protein from roti. But मुझे साथ में at least 10 to 12 grams of protein overall लेना है. So I should have 1 कटोरी thick दाल और 1 कटोरी राजमा, और से कोई भी दूसरी दाल है, या फिर नॉनवेज है तो चिकन. नॉनवेज है तो एटलीस्ट 100 grams चिकन और 2 eggs, or maybe a fish 100 gram. This is minimum that should be there in our food. And I've also seen कि हम लोग राइस भी खाते हैं, रोटी भी खाते हैं. It's like carb overload. उससे अच्छा रोटी खा लो, राइस नेक्स्ट टाइम खा ले. बचपन में मेरा ऐसा होता था, मैं दाल रोटी खाता था, 3 रोटी खाता था दाल के साथ, फिर दाल चावल भी खाता था. Yes, yeah, this is common with Indians. हाँ. Like even I have been brought up having that. But I have chosen to have just 1 carb at a time. क्योंकि राइस सबको पसंद है मोस्टली. सो उससे अच्छा है कि राइस एंड रोटी अलग से खा लो. सो राइट वे टू ईट इज, कोई भी आप मील खा रहे हो तो सबसे पहले आप फाइबर लो. फाइबर आपके सैलेड भी हो सकते हैं, कैरेट्स हो गया, कुकुम्बर हो गया. आपने वो किया तो आपका गट बैक्टीरिया विल बी हेल्दी, आपको भूख भी कम लगेगी बिकॉज इट्स इनसोल्यूबल फाइबर, सो इट विल सेटिएट यू. ठीक है. उस अनियंस आर वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रीबायोटिक फूड फॉर गट, इसलिए हम वो अनियन देते हैं रेस्टोरेंट में भी वगैरह, कटे हुए अनियंस. गॉट इट. देन आफ्टर फाइबर वील टेक प्रोटीन. करेक्ट. ये सीक्वेंस फॉलो करना है. पहले फाइबर फिर प्रोटीन. प्रोटीन से भी होता है ना कि हमें भूख कम लगती है अगर आप प्रोटीन खा लेते हो. सैटिटी जो होता है वो कैसे होती है?
क्यों प्रोटीन खाने से भूख कम लगती है बाद में? So protein are like made for muscle development. हाँ. Also अपनी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म होता है ना, once you eat food there is a flow in which your food gets digested. Okay, so पहले कार्ब्स डाइजेस्ट होंगे, फिर प्रोटीन्स डाइजेस्ट होंगे, फिर फैट डाइजेस्ट होगा. तो द डे यू हैव हाई कार्ब फूड, ओके, वो डाइजेस्ट जल्दी जल्दी हो जाएगा, तो मतलब आपको भूख भी जल्दी लगेगी. बट इफ यू हैव प्रोटीन, एडिक्वेट प्रोटीन, तो फिर इट विल गिव यू उसको ब्रेक डाउन करने में टाइम लगेगा, डाइजेस्ट करने में टाइम लगेगा, इसलिए आपको लंबे टाइम के लिए भूख नहीं लगती है. यस, प्लस इट विल गिव यू सैटिस्फैक्शन. व्हाई डू यू नीड सो मच ऑफ व्हेन यू हैव कार्ब. आपने कभी नोटिस किया है कि आप आमरस 2 कटोरी भी खा लो आपको भूख लग जाएगा? आमरस, हाँ. लेकिन उसकी जगह पे आप 1 बोल सैलेड खाओ, एक जवार की रोटी और एक पल्स खाओ, आमरस से आमरस जितना ही आपको कैलोरीज मिलेगा, बट यू विल बी सैटिस्फाइड. समोसा भी देखो, एक खा लो 250 कैलोरीज होता है, बट यू विल नॉट स्टॉप एट वन समोसा, यू विल नीड समथिंग. 3-4 तो खा ही लेते हैं एग्जैक्टली इजीली. Exactly, 1000 calories. And it's empty calories because उसमें ना ही ज़्यादा फाइबर है, it's loaded with fat, plus and empty calories मतलब समोसा इज तला हुआ मैदा और आलू, मैदा एंड आलू, yes. उसका मिक्स मैं खा रहा हूँ, तो मैं बस कार्ब्स भर रहा हूँ अपनी बॉडी में. Yes, and fat भर रहे हो. कार्ब्स और बैड फैट्स भर रहा हूँ. बैड फैट्स इसलिए क्योंकि घर पे नहीं तला है. बाहर तो वो लोग क्या करते अगर हैं, घर पे तला हूँ तो still it's after a point when you heat oil, heating point से उसका heating point से ज़्यादा हो गया ना, तो again it gets converted into trans fat. वो सेम So smoke point का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. Got it. So for everyone watching, उनको अगर सही तरीके से खाना खाना है तो सबसे पहले आपको फाइबर लेना है, उसके बाद आपको प्रोटीन लेना है, उसके बाद आपको कार्ब्स लेना है एंड फैट्स लेना है. ये आपके, और प्रोबायोटिक्स आपको फाइबर से मिल जाता है. नहीं, प्रोबायोटिक्स फाइबर से हमको प्रीबायोटिक मिलेगा. प्रोबायोटिक मतलब अचार है या बटर मिल्क है या दही है. ठीक है. So आपको ये 4 और 5 जो चीजों का ध्यान रखना पड़ता है with each and every meal that you're having. Right. Correct. There's a catch here. हाँ. आप टीवी देखते हुए खाते हो ना, आप जल्दी जल्दी खा लोगे, you won't even realize it, and your body will not be able to digest that food better. So you should always chew your food completely and slowly. So this is one question I've been always asked. कि मैं 4 रोटी खाऊं, 2 रोटी खाऊं, 3 रोटी खाऊं. So I would say ऐसे खाओ कि follow the flow, and secondly chew your food. Get that taste of your food, know what you are doing rather than mindlessly eating. Mindful eating. Yes. जो concept अभी. Yes. So ठीक है. And cheat meal का क्या है? Like मेरे इस केस में context अगर ये है कि मतलब I think मैं हफ्ते में 2-3-4 बार चीट मील कर लेता था. रात को कुछ आइसक्रीम खा लूंगा, बीच में कुछ कर लूंगा. फिर आपने मेरे को बोला कि शाम को आपने मेरे को भेलपुरी खाने का शौक था, तो आपने राजू भाई को बोल के भेलपुरी में चेंजेस करवा दिया और उसको थोड़ा लेस हेल्दी, उसको ज्यादा हेल्दी, लेस अनहेल्दी बना दिया, हेल्दी बना दिया उसको. सो चीट मील ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं. कोई बोलता है कि 6 दिन मैंने अच्छा खाया, 7वें दिन मैं चीट मील कर रहा हूँ और पूरा बिगड़ जाती है मेहनत. तो उसका क्या है लॉजिक है? सो चीट मील ना, आई टेल यू व्हाट, ऑल ऑफ अस क्रेव फॉर फूड. तो ये जो चीट मील है, जैसे पिज्जा है, पास्ता है, लेट मी टेल दैट एग्जांपल, दे आर चीट डोपामिन. आप वो खाते हो ना, आपको अच्छा लगता है, राइट? क्यों अच्छा लगता है? क्या मैक्रो क्या है उसमें? बिकॉज ऑफ बेसिकली फैट है, राइट? तो फॉर मी इट्स गोइंग टू बूस्ट माई एसिटाइल कोलिन विच इज अ न्यूरोट्रांसमीटर. तो एसिटाइल कोलिन लिबरेट होने से मुझे बहुत अच्छा लगेगा. जैसे मैंने शुगर खा लिया तो डेजर्ट है, राइट? तो इट विल बूस्ट माई सेरोटोनिन लेवल. सेरोटोनिन इज अ फील गुड हार्मोन. डोपामिन विल गिव यू हाई. एसिटाइल कोलिन विल ऑल्सो मेक यू फील गुड, लाइक दैट हाई. तो ये जो चीट मील का कंसेप्ट है, इट्स लाइक द फूड इज प्रिपेयर्ड इन अ वे दैट इट प्लीजेज योर टेस्ट बड एंड इट्स चीप डोपामिन. ओके, सो इफ यू फॉलो, ऐसा नहीं है कि people, the healthiest people don't cheat. Okay, so that is why I've changed this concept कि उसको cheat meal बोलना ही क्यों है. Name it as your reward meal or name it as your guilt, not guilt but gift. इसमें और एक सवाल मेरा ये है कि सिंपल कार्ब क्या है, कॉम्प्लेक्स कार्ब क्या होता है? Okay, so simple carbs जैसे फ्रूट है, वो भी अपने simple carbs है. Like it's fructose fruit, but it also has soluble fiber, so it's good. लेकिन अगर आप शुगर देखो तो शुगर इज सिंपल कार्ब्स, लाइक एम्प्टी कैलोरीज. फिर आप जैगरी देखो, हनी देखो, दिस आर सिंपल कार्ब्स बिकॉज उसमें फाइबर नहीं है, तो दे कैन easily get digested and they can easily boost your blood sugar levels. Okay, and complex carb? Complex carb जैसे whole grains जो है, all of whole them grains are, मतलब जैसे राइस है, whole rice,
पॉलिश्ड राइस नहीं, जो बासमती राइस मार्केट में मिलता है दैट्स पॉलिश्ड, ओके। तो वो नहीं, वो नहीं, वो सिंपल कार्ब है। वो काइंड ऑफ सिंपल कार्ब्स है, क्योंकि द वे वी प्रिपेयर वी आर लूजिंग एवरीथिंग। ओके, सो जिसमें भी फाइबर इनबिल्ट है और हमने निकाला नहीं है उसको process से, कॉम्प्लेक्स कार्ब बोलते उसको कॉम्प्लेक्स हैं। इसका कोई एग्जांपल चावल किस टाइप का जैसे चावल? गेहूं, गेहूं, अनपॉलिश्ड व्हाइट राइस, हाँ जवार है, बाजरी है, हाँ, these are all complex carbs. In fact, for that matter, pulses है, sprouts है, they also have good complex ठीक carbs है। in that. सो फॉर द ऑडियंस, सिंपल कार्ब में फाइबर नहीं होता है और वो नहीं। एम्प्टी कैलोरीज की तरह होते हैं, तो आप खाते रहते हो, जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, you'll keep eating and It's that not leads going to to problem. satiate you. It's not gonna satiate you and then blood Yeah. sugar level है जो आप कह रहे हो। कॉम्प्लेक्स कार्ब में फाइबर मिक्स रहता है तो इट सेटिएट्स यू, करेक्ट? Correct. एंड आपको जल्दी भूख नहीं लगेगी और आपको फिल रखेगा, which is Plus, it satiating. will control your blood sugar levels because fiber has this function of controlling your blood sugar levels. तो फ्रूट भी सिंपल कार्ब्स है लेकिन उसमें सोल्यूबल फाइबर है, तो इफ यू ईट इट इन मॉडरेशन इट्स गुड। तो वो एक तरीके का कॉम्प्लेक्स नहीं हो गया फिर फ्रूट? आई वुडंट वांट टू कॉल इट एज कॉम्प्लेक्स बिकॉज उसमें जो शुगर है ना वो फ्रक्टोज है, तो यू डोंट नीड फर्दर मेटाबॉलिज्म ऑफ दैट शुगर, मतलब योर बॉडी कैन इजीली डाइजेस्ट और ये एब्जॉर्ब इट। फ्रूट जूस वाला जो इतना चल रहा है वो इसलिए चल रहा है बिकॉज आपने जैसे बताया, अगर मैं एक आम खा रहा हूँ और उसको जूस में कन्वर्ट कर देता हूँ तो सारा फाइबर चला जाता है। एग्जैक्टली, फाइबर चला गया। एंड टू बी ऑनेस्ट, आप 50 ग्राम फ्रूट खाओगे ना तो आपको 12 to 12.5 to 13 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स मिलेगा, ओके। तो 13 grams of carbs मतलब instant your blood sugar is going to rise. It's empty calories, so it's not going to satiate me. Plus अगर हम लोग जूसर में फ्रूट जूस बनाते हैं तो फाइबर तो सारा चला ही गया, तो why do you want to have such sugars which does not have any vitamins, which does not have fiber and which is nothing but just fructose. And अगर आप मार्केट का लेते हो तो उसमें लिक्विड शुगर भी डाल देते हैं। एग्जैक्टली, फ्लेवरिंग एजेंट्स होते हैं, इमल्सिफायर्स होते हैं, एडिटिव्स होते हैं, स्टेबलाइजर्स होते हैं। स्ट्रीट फूड वर्सेस पैकेज फूड, क्या खा सकते हैं क्या नहीं खा सकते हैं? मेरे लिए दोनों ही कचरा है। दोनों ही कचरा है आपके लिए? आई एक्चुअली कॉल देम कचरा। हाँ। सो स्ट्रीट फूड का क्या है ना, ओके लेट मी स्टार्ट बाय डिस्क्राइबिंग दिस। आपने कभी भी स्ट्रीट फूड वाला वेंडर देखा होगा, वो जनरली गटर के ऊपर एक टाइल लगा के ऊपर खड़ा है। टेल मी वेयर इज द हाइजीन? Do they even wash their hands before preparing food? And if you go and eat sandwich, वो लोग आलू रात को उबाल के रखते हैं and then they have that stall for entire day. So you think that aloo is healthy, all the nutrients and everything is gone. It's just, in fact, जो बाहर के एयर है उसके माइक्रोब्स भी आलू पे बैठ गए। There is hygiene. और ये तो एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गया। Yes. माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अगर मैं इसको समझने की कोशिश करूं, all the micros are lost. माइक्रोज आर लॉस्ट। Micros तो are कुछ lost. विटामिन नहीं है, कुछ मिनरल नहीं है। जनरली नहीं होते हैं unless ये वो आप किसकी बात कर रहे हो? स्ट्रीट फूड की? स्ट्रीट फूड की, ठीक। अनलेस वो आपके सामने फ्रेश ककड़ी टमाटर खीरा काट के आपको सैंडविच बना के दे रहे हैं। जस्ट एन एग्जांपल। ऑल्सो इफ यू सी, वो पूरे वेजिटेबल्स सुबह काट लेते हैं बिकॉज शाम को उनकी रेडी पे बहुत ज्यादा वो मस्त स्पीड में बनाते हैं 2 मिनट के अंदर। So where is the nutrients? And most of the water soluble vitamins get lost. They are heat and air labile. तो चले गए। ठीक है, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फ्रॉम स्ट्रीट फूड आर गॉन। नाउ मैक्रो पे आते हैं। मैक्रो की बात करें तो फैट में आपने कभी देखा है घर पे पाव भाजी बना हो और बाहर दे यूज एंटायर स्लैब ऑफ बटर which is nothing but saturated fat. हाँ, वो रील्स आती हैं ऐसे मक्खन और घी तो ऐसे डालते हैं, ऐसे पता नहीं पानी पिला रहे हो। मतलब पानी भी नहीं, पानी भी कम है इनके सामने। That's why it's tasty. तो फैट, इतना सैचुरेटेड फैट का आपको जरूरत क्या है? सेम लॉजिक, वो फैट पसंद आता है तो मक्खन डाल दो तो हमें पसंद आती है। यस, टेस्ट। एंड मसाले में भी आप देखो बहुत अच्छे से लाइक इट्स मसालेदार, राइट? तो कहाँ है न्यूट्रिएंट्स? कार्ब्स है, प्रोटीन सिंपल कार्ब्स है। या प्रोटीन कहाँ मिला आपको? क्योंकि प्रोटीन के लिए बैलेंस करना पड़ेगा। नाउ हु इज गोइंग टू गिव यू दैट एडिक्वेट एंड गुड क्वालिटी प्रोटीन? नोबडी। वो पनीर, बर्गर, पनीर, मोमोज खा लो तो उससे कुछ नहीं होता ना। मोमोज की बात करें, बाहर का मोमोज वो लोग पहले से बना के रख देते हैं। हाँ, वो उसको बस वो स्टीम करके देते हैं आपके सामने। हाँ, तो कहाँ हेल्दी हुए ही नहीं। आपको हेल्दी खाना है तो, एंड वो जो बाहर का पनीर है, ट्रस्ट मी, आई गेट पनीर एट 640 to 650 rupees per kg. Okay, you think those street vendors will be using that good quality ये सब paneer? सुन के थोड़ी उल्टी सी आ रही है कि मैं क्या क्या खाता था।
बिल्कुल नहीं खाना है मुझे अभी से। नहीं, सो पनीर भी क्या बाप है, रे। इट्स नथिंग बट स्टार्च। एंड अगर हाँ आप दिवाली के टाइम पे वो फूड FSSAI वाले जहाँ पे भी जाते हैं, यू सीन हाँ हाउ हाँ अडल्ट्रेटेड द फूड इज. हाँ So people are becoming so smart that they are coming up with alternatives for everything, हाँ। which is not healthy. हम्म। तो और पैकेज फूड, मेरे को पैकेज मोमोज मिल रहे हैं, पैकेज पिज्जा मिल रहे हैं। सो अगेन पैकेज थिंग का क्या है ना, ये सब तो प्रोसेस फूड वाला सारा पार्ट पैकेज फूड में है. बट आपने देखा होगा उनका शेल्फ लाइफ ज्यादा है. हाँ, क्यों? बिकॉज इट हैज कोल्ड स्टोरेज में डाल के रखते हैं। नो, बिकॉज इट हैज सोडियम. दे आर ऑलवेज हाई ऑन सोडियम. सॉल्ट बहुत होता है। या बहुत सॉल्ट होता है. इनफैक्ट आई हैड जस्ट बीन टू अ सुपरमार्केट टू बाई समथिंग और मैंने एक प्रोडक्ट देखा, इंस्टेंट डोसा. सो आई वाज Correct. लाइक मेरे लिए अच्छा रहेगा, द डेज व्हेन आई हैव हेक्टिक डे मैं ये बना सकती हूँ. आई जस्ट फ्लिप्ड एंड आई रेड द न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन. लेबल पड़ेगा इंडिया। It had हाँ 1100 grams of sodium, 1100 milligrams of sodium. बहुत ज्यादा होता है ना। बहुत ज्यादा. You don't need it. 1100 ग्राम जो सोडियम, मतलब क्या, एक ग्लास भर के? मिलीग्राम, माय बैड, मिलीग्राम. मिलीग्राम। हाँ, लेकिन आपकी बॉडी का रिक्वायरमेंट कितना है? 2500 मिली पर डे। पर डे. और आप 1100 मिलीग्राम कमिंग फ्रॉम वन सर्विंग ऑफ डोसा. वन सर्विंग का 1100 है? Yes, अरे yes. बाप रे। So they are high on salt and they are high on additives and preservatives to improve their shelf life. आप again label पढ़ना, you will see preservatives. There are classes of preservative, class 1, class 2. So class 1 is generally natural food as a preservative, जैसे सोडियम है, शुगर है. हाँ। Class 2 is chemicals. जिसमें E series का जब अगर आता है preservatives, तो it impacts your brain. Excessive intake is going to impact your gut. फिर उसमें कंपोनेंट्स होते हैं xylitol और अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं जो और आपके गट की वाट लगाएंगे. ठीक है, तो ये भी कचरा है, वो भी कचरा है, दोनों नहीं खा सकते। नहीं खा अब रेस्टोरेंट फूड में क्या होता है? Restaurant food, I don't want to name that restaurant, but during my study days we had a visit to a 5-star restaurant. Okay, तो उनका फूड जो यूनिट था ना, उसमें देयर वाज अ चॉपिंग डिपार्टमेंट. तो पहले तो फूड को क्लोरीन वाटर में डिप करते थे, वेजिटेबल्स को. Okay? साफ करने के लिए। साफ करने के लिए, विच इज एज पर देम विल किल ऑल द बैक्टीरिया. जी। अग्री. लेकिन क्या होगा, माइक्रोब्स भी चले गए लेकिन विटामिन्स भी चला गया. एंड इट्स लोडेड विद क्लोरीन. एक्सेस ऑफ क्लोरीन इज नॉट गुड फॉर यू. उसके बाद फूड चॉप करके, वेजिटेबल्स चॉप करके उसको वापस पानी में डालते हैं. अगेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स लॉस्ट. तो फिर आप ऐसा फूड जब खाओगे तो आपको ब्लोटिंग होगा. एंड अगेन फॉर मी इट्स एम्प्टी कैलोरीज. ब्लोटिंग मतलब सी फाइबर है फूड में, राइट? फाइबर तो हमने निकाला नहीं है, लेकिन विटामिन्स निकल गए और कब से बना हुआ है. हाँ। तो आपको गैस वगैरह या थोड़ा सा स्टमक पेन, जो पेट फूल जाता है, वैसा सब तो फीलिंग. पेट के अंदर एक्चुअली क्या हो रहा है, मतलब वो आप एम्प्टी कैलोरीज खा रहे हो ना, तो आपकी हाँ। बॉडी कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बनाएगी. तो फूल जाता है उसकी वजह से। You won't feel good. अच्छा। So this happens with restaurant because they want to keep up with the demand of the food and customers. आपने देखा होगा घर पे मम्मी खाना बनाती है 2 घंटा लगता है. हाँ रेस्टोरेंट में आपको 15 मिनट में आपका कितना भी कॉम्प्लिकेटेड ऑर्डर हो मिल जाता है. हाँ, ऐसे क्यों? Because ये सब फॉलो करते हैं ये process? सब बने हुए ही रहते हैं. लाइक उनके ग्रेवीज मेड होते हैं, उनका वेजिटेबल्स चॉप्ड होता है, उनका आटा गूंदा हुआ होता है, उनका राइस बना हुआ होता है. हाँ। सो दे जस्ट वार्म इट, ये नहीं ऐड सोचा कभी। मसालास एंड दे गिव यू. सो अगर मैं रेस्टोरेंट जा रहा हूँ, क्योंकि चलो मैं स्ट्रीट फूड अवॉइड कर सकता हूँ, मैं पैकेज फूड अवॉइड कर सकता हूँ, Correct. बट एज समबडी जो बहुत ट्रैवल करता है, जो डिपेंडेंट है कहीं ना कहीं स्विगी जोमेटो पे या रेस्टोरेंट पे जाके Correct. खाने में, लोगों से मिलने में, वो तो मैं अवॉइड You नहीं कर can't सकता. avoid. तब मैं क्या खा सकता हूँ या क्या अपने दिमाग में रख सकता हूँ बिफोर ऑर्डरिंग? So I always feel order a stir fried vegetable salad, जो वो सबसे ज्यादा टाइम लगाते हैं. हाँ. ओके, तो स्टर फ्राइड वेजिटेबल सैलेड या सूप मंगा लो. ऑफ कोर्स 99% ऑफ द टाइम वो सूप में भी सोडियम ज्यादा रहता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बना हुआ पहले से रहता है. तो स्टर फ्राइड वेजिटेबल्स मंगवा लो. सी इफ यू आर अ नॉन वेजिटेरियन तो एग या फिश या लाइक यू नो सम ग्रिल्ड चिकन मंगवाओ. इफ आई एम अ वेजिटेरियन आई वुड प्रेफर अ दाल. आई नो इससे मुझे थोड़ा सा ब्लोटिंग होगा, बट एटलीस्ट इट्स स्टिल बेटर. And then some carbs. और अगर मैं कोई इटालियन रेस्टोरेंट में गया हूँ, वहाँ मैं क्या मंगवाऊँ? तो गार्लिक ब्रेड है, पिज्जा है, So everything will be मैदे वाला. तो चिकन पिज्जा, उस टाइप का पनीर So पिज्जा. again my take is घर से स्प्राउट सैलेड या फिर वो नहीं कर सकते ना, मतलब वो तो फिर you say if you're traveling, हाँ, okay? हाँ. तो घर से या पहले अपना सत्तू ले लो.
अगर आज मैं अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ 8 Right. बजे डिनर पे, 3-4 दोस्त हैं, हम इटालियन रेस्टोरेंट जा रहे हैं, हम क्या ऑर्डर करें वहाँ पे? मेरे को अगर अपना हेल्थ का भी फोकस करना है, ध्यान सबसे बेस्ट कॉल So you order multigrain bread wala pizzas. जो Okay. थिन क्रस्ट पिज्जा Yeah. होता है. Then order burrata wala pizza because burrata has better fat compared to that mozzarella. I mean, even mozzarella can be ordered. Got it. Gouda cheese and all those, na, they are high on sodium. Mozzarella has less sodium. ब्रोकली पिज्जा उस टाइप का. Yeah. So vegetables ज़्यादा डाल दो. And always see whenever you're going to an Italian restaurant, stuffed fries तो वहाँ पे भी मिलेगा. In fact you get as ciders as well. So Correct. have that. और पीने के लिए क्या लेना चाहिए? मतलब अपार्ट फ्रॉम अल्कोहल, मतलब सोडा, लेमन सोडा पी लें कि कोक जीरो पी लें, क्या करें? So I'm not a fan of drinking with food. बिकॉज Okay. जब आप लिक्विड लेते हो फूड के साथ, हम्म, मैं कोक सोडा पे तो बाद में ही आऊंगी, लेकिन इवन वाटर फॉर दैट मैटर इट्स गोइंग टू डाइल्यूट योर डाइजेस्टिव जूसेस, तो आपका डाइजेशन इम्पैक्ट होगा. तो मतलब एक सेकंड, बहुत लोग कहते हैं कि खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, क्या खाने है के ये? साथ भी पानी नहीं पीना चाहिए, और बाद भी नहीं पीना चाहिए? और बाद में भी 1 घंटे के बाद पी सकते ये सच हो. है? ये सच है, बिकॉज आपकी बॉडी तभी डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज करती है. तो अगर आप उसको डाइल्यूट कर दोगे, पानी पियोगे तो डाइल्यूट कर देगा डाइजेस्टिव जूसेस को, डाइजेशन इम्पैक्ट होगा, आपको और हैवी फील होगा. तो पानी पहले पीना चाहिए? You can. So I have seen many of my fellow nutritionists asking their client to drink 300-400 ml water before food. हम्म, I feel if you are dehydrated, you should drink water because water plays a role in metabolism. तो पानी तो पीना ही चाहिए, लेकिन keep a gap. And honestly, आपके स्टमक में 1 मिनट से ज्यादा पानी नहीं रहता है अगर आपने एम्प्टी स्टमक पानी पिया है तो. So you can because it does not have calories, it doesn't need digestion, so it just empties your stomach. तो अगर प्यास लग रही खाते वक्त पानी मत पियो, नहीं पियो, कोक भी मत पियो, लेमन सोडा मत पियो, नहीं. कुछ भी मत पियो. And now coming to lemon soda or coke or diet coke, आपने जब ओपन करते हो तो what do you see? Those fizz. What is that fizz? Carbon dioxide. हाँ, Carbon dioxide is something that you exhale out of your body. वो आप डाल रहे हो अंदर. हाँ, वो अंदर डाल रहे हो, and carbon dioxide makes your body acidic. एसिडिक का मतलब क्या होता है? मेक्स योर बॉडी एसिडिक में क्या होता है मेरे गट में? So जब भी हमको भूख लगती है ना, हमारा बॉडी एसिडिक होता है. ओके, तो एसिडिक बॉडी में अगर आप खाना खाओगे तो बेटर डाइजेशन होगा. जब भी हमें भूख लगती है हमारा गट एसिडिक रहता है. लाइक मतलब आपकी बॉडी एसिड प्रोड्यूस करती है, हाँ, HCl. मुझे एक आवाज भी आती है Legit करके. HCl, हाँ. हाँ, And that HCl helps in digestion and breakdown of food. गॉट इट. But अगर आपका बॉडी आप कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हो तो वो HCl के फंक्शन में इंटरवीन कर रहा है. एंड आवर बॉडी इज वेरी स्मार्ट कि अगर कहीं और से बाहर से कुछ आ रहा है तो देन इट विल नॉट वर्क. प्लस कार्बन डाइऑक्साइड विल इंटरफियर विथ योर डाइजेशन, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इज अ बाई प्रोडक्ट विच इज लिबरेटेड आउट, रिमूव्ड आउट फ्रॉम योर लंग्स थ्रू नॉस्ट्रिल्स. तो वो लोग जो होते हैं जो क्रिकेट देख रहे होते हैं और अपने साथ चिप्स, पिज्जा और कोक पी रहे होते हैं, वो तो मतलब You know what they are doing. This is what I did with my daughter because she liked Cokes. Not Cokes, but diet, normal Cokes. तो मैंने एक दिन लिटरली वो थम्सअप था, थम्सअप या पेप्सी कुछ तो, I brought that in a bottle. वो बॉटल का होल में मैंने बॉटल के कैप पे मैंने होल करा, and कमोड का लाइनिंग पे I just sprayed everything on a white commode lining and I left it for 15-20 minutes and then I showed her, see how clean is this. Also, this acidic carbon dioxide leaches out calcium from your bones. wow. So लीचेस आउट कैल्शियम फ्रॉम बोन्स, मतलब मेरे बोन्स से कैल्शियम निकाल रहा है वो, और वीक बन जाती है मेरी बोन्स. exactly. So people having too much of diet coke has chances of suffering from osteoporosis. मेरे तो कितने दोस्त होने वाला है, मैं तो सोच रहा हूँ. But osteoporosis is very common nowadays. You need to be mindful, otherwise you will suffer. एंड ये भी होता है ना, अगर मैं किसी भी सॉफ्ट ड्रिंक को ऐसे खोल कर रख दूं, गैस निकल जाएगी उसकी सारी, तो मैं 2 घंटे बाद पी रहा हूँ, इतना गंदा लगता है, वो मीठा पानी लगता है फिर वो. मीठा ही पानी है ना. So I have not even gone to the sugar part that it has. It's high on sugar and it has वो जो टेस्ट के लिए और कलर के लिए जो डालते हैं चीजें, they are also not good for your health. तो आप एक डिबेट सेटल कर दो, कोक जीरो पी सकते कि नहीं पी सकते? नहीं, क्यों नहीं पी सकते? उसमें तो अगेन शुगर फिज तो है, फिज है, ठीक है. राइट. एंड व्हाट अमाउंट द टाइप ऑफ जो स्वीटनर होता है, आर्टिफिशियल स्वीटनर, नॉट ऑल आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आर गुड फॉर यू एक्सेप्ट स्टीविया. आई एम नॉट अ फैन ऑफ एनी आर्टिफिशियल स्वीटनर. स्टीविया भी इसलिए बिकॉज इट्स नेचुरल. बाकी सुक्रालोस होता है. एंड लेट मी ब्रेक दिस मिथ अगेन फॉर यू.
that aspartame, which was artificial sweetener, Hmm. is banned in most of the countries across the globe except India. So aspartame impacts your brain function. किसमें होता है ये? ये सारे जीरो डाइट कोक वगैरह जो होते हैं ना, जीरो कैलोरीज वाले कोक, उसमें जिसमें भी बोलते हैं ना शुगर फ्री है, उसमें सुक्रालोस या एस्पार्टेम यूज होता है एज एन आर्टिफिशियल स्वीट. वो भी है ना, रेवांत ने डाला था आई थिंक इस पे एक रील की पाम ऑयल यूरोप में अलाउड नहीं है, यूएस में अलाउड नहीं है, बट इंडिया में अलाउड है बिकॉज वो सस्ता है, बट इट्स वेरी बैड फॉर योर हार्ट. Because it is high on trans fat, so it's bad for your heart. Likewise, aspartame is not good. Makes sense. So any coke it is, I'm not a fan of. Avoid it. Even carbonated beverages should be avoided. And for that matter, any liquid should be avoided. So like if you say नहीं मुझे फिर भी कुछ पीना है, I would say vegetable juice है जो मिलेगा नहीं रेस्टोरेंट में, prefer buttermilk है. बटरमिल्क पी सकते हैं. Yes, it's better than. ड्यूरिंग द फूड पी सकता हूँ मैं बटरमिल्क. Yes. Sips, like don't have it like पूरा glass. गल्प मत करो, but like थोड़ा थोड़ा. Like just a sips here and there along is still okay. Otherwise तो तुम भागी जाओगे, फॉलो नहीं करोगे कुछ, because I'll be too restricted. So yes. So बटरमिल्क के अलावा और क्या पी सकते हैं? और कुछ है? ये जूसेस जो मंगाते हैं वो सब कुछ नहीं. वेजिटेबल जूस इज फाइन. वेजिटेबल जूस इज फाइन because it has fiber, it has calories. उसमें फाइबर्स नहीं जाते हैं. फ्रूट जूस से फाइबर चला जाता है, वेजिटेबल जूस में फाइबर रहता है. Depending on the machine that you use in juicing. जो गाढ़ा लगता है मतलब उसमें फाइबर है. फाइबर है. एकदम पानी कर दिया मतलब फाइबर नहीं. So अगर आप जूसर यूज करोगे तो फाइबर नहीं रहेगा. अगर मिक्सर या ब्लेंडर यूज करोगे तो फाइबर रहेगा. फॉर फ्रूट्स आल्सो? यस, बट एनीवेज आई एम नॉट अ फैन ऑफ फ्रूट जूस. स्टिल मार तो देता ही है फ्रूट्स में. आई थिंक फ्रूट्स आर थोड़ा और लाइक इजी टू लाइक किल द फाइबर इन इट कंपेयर्ड टू वेजिटेबल्स, बिकॉज़ उसमें सोल्यूबल फाइबर है ना, तो वो सोल्यूबलाइज्ड ही है, तो वो ज्यादा इतना. आप मैंगो देखो तो उसमें रेशियो होते हैं इनसोल्यूबल फाइबर के, जो आपको लीचीज में नहीं मिलेंगे. वैसे नहीं, दिस इज एक्सट्रीमली हेल्पफुल आई थिंक फॉर एवरीवन. मेरी जो डाइट थी उसमें आपने 3-4 चीजें हटाई थी, 3-4 चीजें ऐड करी थी, पनीर बीइंग वन ऑफ देम. सो जो लैक्टोस इंटॉलरेंट वाला सिस्टम है, मैंने आपको पूछा भी था अभी 3 दिन पहले कि मैं लैक्टोस इंटॉलरेंट हो गया, तो उसका सीन क्या, मतलब पनीर में बहुत खाता था, एंड जब भी मैं पनीर बटर मसाला या कुछ खाऊंगा, दोपहर को खाऊंगा, उसके 1 घंटे बाद मुझे एक तो गर्म लगेगा, माय गट वुड बी कंप्लीटली वार्म एंड आई वुड फील लिटिल इरिटेटेड, प्लस एनर्जी भी लो होने लग जाती थी. वो पनीर जब मेरे सिस्टम से हट गया, हफ्ते में एक बार हो गया या व्हाटएवर, कम हो गया, मेरा ये सब इम्प्रूव हो गया. इसका क्या ब्रेकडाउन है? मतलब तो पनीर जो मिल्क से बनता है, एंड पनीर सो जनरली जब भी हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन ज्यादा होता है, तो आई प्रेफर अवॉइडिंग केसिन. केसिन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन मिल्क एंड इट इज प्रीडोमिनेंटली प्रेजेंट इन पनीर. तो जब आप केसिन हटा देते हो, वी आर गिविंग रेस्ट टू डाइजेस्टिव सिस्टम, and that is why you are feeling good. Second thing is, ideally human beings are not meant to digest lactose coming from milk. Okay, but over the generation those genes got mutated and now we are able to digest lactose. So you are, and what is lactose? Lactose is a kind of carb which is present in milk. Milk is like one of the biggest lies also sold to us. Like मैंने एक डॉक्यूमेंट्री पढ़ रहा था कि कैसे यूएस ब्यूरोक्रेट्स एंड लाइक यूएस कंपनीज जिन्होंने मिल्क बहुत प्रोड्यूस करते थे, उन्होंने अपना नैरेटिव वाया मार्केटिंग पुश किया था कि मिल्क इज गुड फॉर यू, बोन्स के लिए स्ट्रांग होता है. एंड अपेरेंटली टुडे ग्लोबली अराउंड 60% ऑफ द लाइक वर्ल्ड इज लैक्टोस इंटॉलरेंट, बट बहुत लोग को पता ही नहीं है और वो पनीर खाए जा रहे हैं. सो हाउ कैन समबडी नो कि उनको लैक्टोस इंटॉलरेंस है कि नहीं? उसके लिए कुछ टेस्ट होता है? कैसे कर सकते हैं? सो लैक्टोस इंटॉलरेंस के लिए टेस्ट होता है, बट आई एम डाइवर्टिंग फ्रॉम द टॉपिक हियर. जितना पॉपुलेशन है इन लाइक अक्रॉस द ग्लोब, उतने क्या हमारे पास कैटल्स है मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए? नहीं है. राइट. सो दोज कैटल्स आर इंजेक्टेड विथ हॉर्मोन्स so that they continuously produce milk. They are injected with antibiotics so that they don't fall ill. And जब वो milk हम पीते हैं, तो that is what creates major ruckus. Lactose or casein and all that comes secondary. So that is the biggest culprit. Okay. So and while we are saying that milk is a good source of calcium, no doubt it has calcium, but it also has sodium and it also has iron. तो ऐसा नहीं है कि आप
आपने कैल्शियम लेना है तो आपको मिल्क ही खाना है. You can get calcium from sesame seeds also. And if your gut health is good, it will be able to absorb that calcium. But if your gut health is not good, even if you are having calcium, your body will not absorb it. So this notion of having calcium from milk, etc., it's all marketing strategies. I have so many clients who are not on any dairy products, but they don't complain of joint pains. तो बच्चे को दूध पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए, बहुत ज़्यादा पीते हैं अपनी मात्रा से, क्या है बहुत ज़्यादा पीते हैं? Again, दूध कौन सा होना चाहिए which is like hormone free, antibiotic free. अब वो कैसे पता लगेगा? So that is why like FDA approval वाला मिल्क जो होता है ना, organic, hormone free, antibiotic free, we should go for that. और लैक्टोज फ्री जो मिल्क होता है? Lactose free milk is generally processed, okay, and that is specifically created for people with lactose tolerance. Still, I do not know the efficacy or that FDA वाले जो certificates है which says that it is hormone free and antibiotic free or cruelty free. I wouldn't want to go for it. It's okay, you're not dying if you don't drink milk. You can still get all the nutrients of milk, including protein, from other alternative sources. तो फिर मेरे ऐसे इंसान को क्या करना चाहिए जिसको पनीर कुछ ज़्यादा ही पसंद है बट वो इतना नहीं खा सकता है? इज इट लाइक अ हार्ड ट्रुथ व्हिच आई हैव टू डाइजेस्ट कि मतलब लिमिट में खाओ? हील योर गट. सेकंड इज घर पे बनाओ. थर्ड इज एट टाइम्स हैव टोफू. एंड हीलर गट मतलब गट मेरी जैसे फॉर एग्जांपल पर्सनली आई आल्सो फील कि गट इतनी बेस्ट नहीं है मेरी. मैं एक बार पनीर खा लूँ तो फिर खराब हो जाता है व्हाटएवर. तो क्या मतलब क्यों गट खराब क्यों हुई है और फिर ठीक कैसे करें? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम लोग जब गट की बात करते हैं ना, तो गट को हेल्दी रखना है तो एक तो हमने जो बैलेंस मील की बात करी वो इम्पोर्टेंट है. प्रोबायोटिक की बात करी वो इम्पोर्टेंट है. बट उसके अलावा what you put into your system, like the कचरास that we talk about, तो वो कचरा ज्यादा जा रहा है सिस्टम में, न्यूट्रिएंट्स नहीं जा रहे हैं, आपका स्लीप इज कॉम्प्रोमाइज्ड, यू आर नॉट एक्टिव, आपका वाटर इनटेक कॉम्प्रोमाइज्ड है, लाइक यू आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग नेगेटिव. All this will also impact your gut bacteria. And when it impacts your gut bacteria, healing takes a backseat. First. Second, nutrient absorption takes a backseat. तो अगर आपका nutrient absorption backseat ले रहा है, will your body be able to produce the exact neurotransmitters and hormones and enzymes which are needed to digest that food? न्यूट्रिशन अब्जॉर्प्शन क्या है? मतलब मैं सही खा रहा हूँ उसके बाद भी मेरे से सही नहीं होगा. आप सही खा रहे हो, तो आपके बॉडी, सपोज आपने कैल्शियम खाया, तो कैल्शियम एब्जॉर्ब होना चाहिए, ब्लड में जाना चाहिए. उसके लिए कैल्शियम पहले डाइजेस्ट होगा, उसके बाद ब्लड में जाएगा, ब्लड में एसिमिलेट, और उसके बाद आपके सेल्स में एसिमिलेट होगा, राइट? तो बिकॉज योर गट हेल्थ इज नॉट गुड, योर बॉडी इज नॉट रिलीजिंग दोज accurate amount of enzymes, hormones, neurotransmitters to digest, absorb and assimilate that nutrients. तो खाने, अगर मैं फ्लो समझूं, खाना मेरे स्टमक में आता है, ब्रेक डाउन होता है, राइट, और उसके बाद क्या होता है? वो खून में चला जाता है? नहीं, सो जो ग्लूकोज है वो तुरंत खून में जाएगा. बाकी का खाना आपके लिवर में जाएगा. अच्छा. लिवर विल प्ले अ रोल in digesting your fats and in like distributing your macros, okay, and also in digesting your protein. तो थोड़ा सा यहाँ पे डाइजेशन होगा, फिर थोड़ा सा गट में डाइजेशन होगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में भी होगा, एंड थोड़ा सा लिवर में होगा. डाइजेशन का मतलब क्या है? मतलब ये ब्रेक डाउन होकर खून में ही जा रहा है. सो जैसे आपने से रोटी खाया, ओके, तो रोटी इज कार्ब्स, बट उसको पहले ग्लूकोज में अपना बॉडी कन्वर्ट करता है. ओके, इट कैन बी माल्टोज, इट कैन बी डेक्सट्रोज, इट कुड बी एनी एन नंबर ऑफ कार्ब, लेकिन उसको इवेंचुअली ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा. एक बार वो अपने यूनिट फॉर्म में चला गया, उसके बाद वो डाइजेस्ट होता है. ओके, इसलिए मैंने बोला था कि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर सिंपल कार्ब्स, उनको फर्दर डाइजेशन का जरूरत नहीं है. जैसे ही खाया, आपका डायरेक्टली ब्लड में जाएगा एंड ब्लड शुगर बढ़ेगा, एंड देन वो ब्लड वो शुगर आपके सेल्स को देगा. बट when you talk about proteins and fats, they further need digestion and packaging so that it can enter the blood and then that blood can give it to your different cells. तो अगर आपका बॉडी करेक्ट अमाउंट ऑफ एंजाइम्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड हॉर्मोन्स रिलीज नहीं करेगा, तो ये प्रोसेस इम्पैक्ट होगा.
एंड अगर ये प्रोसेस इम्पैक्ट हुआ तो डिस्पाइट ऑफ ईटिंग राइट योर बॉडी इज नॉट एब्जॉर्बिंग राइट. ठीक है, ये पॉइंट मैं समझ गया. बट फिर वेजिटेरियन की हम बात करते हैं, पनीर की बात कर रहे थे, प्रोटीन फिर कैसे मिलेगा? बिकॉज लोगों को लगता है दाल में बहुत प्रोटीन है. मैंने पढ़ा है कि दाल में इतना प्रोटीन नहीं होता है. इट्स नॉट Correct. एडिक्वेट इनफ. सो हाउ कैन अ वेजिटेरियन गाय गेट प्रोटीन व्हेन ही आल्सो हैज टू कंट्रोल कि कितना पनीर वो खा रहा है? हमारी तो आखिरी उम्मीद थी पनीर है, वो भी लेके जा रहे हो आप. आई एम अ प्योर वेजिटेरियन. ओके, तो मेरे लिए अगर प्रोटीन मीट करना है तो आई कॉल दिस पल्सेस एंड दाल एज सेकेंडरी प्रोटीन्स. दे आर नॉट कंप्लीट प्रोटीन, दे आर इनकम्प्लीट प्रोटीन. तो हम इंडियंस है, लाइक वी ईट दाल चावल, इट बिकम्स अ कंप्लीट वी आर प्रोटीन. अ कार्ब ईटिंग Yeah, carb. कंट्री. Yeah, but अगर दाल और चावल carbs, I mean cereal and pulses combine कर लिया तो it will give you complete protein. And but here moderation is the key. मतलब ऐसा नहीं है कि आपने एक कटोरी राइस लिया और उसमें एक कटोरी थिन दाल लिया, देन यू एंश्योर कि आप एक कटोरी थिक दाल ले रहे हो. यू इंक्लूड स्प्राउट्स. आपको अगर ऐसा है कि पनीर नहीं खाना है, हैव दही, कर्ड, होममेड ऑर्गेनिक A2 मिल्क वाला कर्ड खाओ, इजी टू डाइजेस्ट. It will give you probiotic and it will take care of your protein. Include buttermilk. Include cereal pulse combination. I mean, I'm honestly a fan of cereal pulse combination. So, मेरा breakfast, lunch and dinner are majority cereal pulse combination so that it gives me complete protein. सीरियल पल्स मतलब? Combination जैसे rice and दाल, छोला and चावल या राजमा and चावल, या फिर इडली तो राइस एंड उड़द दाल. If dosas also like मूंग दाल डोसा तो उसमें थोड़ा सा राइस डाल दो. आई हैव गिवन यू सत्तू मैनी अ टाइम्स. तो उसमें भी सत्तू में मैंने बोला है थोड़ा रागी पाउडर डाल दो, सो दैट वो सीरियल को उसका जो इनकम्प्लीट प्रोटीन है पल्सेस का वो सीरियल के. आज मैंने दाल पराठा खाया. हाँ, सो अगेन अ कंप्लीट प्रोटीन, क्योंकि दाल में जो अमीनो एसिड्स लैकिंग है वो पराठा में है. रायता के साथ खाया था. Lovely. So curd. So again a complete protein. So that way you can couple, make your cereal pulse combination and make it complete protein. Ensure to have adequate protein and ensure your gut health is good so that even if you are a vegetarian फर्क नहीं पड़ता है. I have so many clients without milk. नॉन वेजिटेरियंस का क्या रहता है? मतलब प्रोटीन तो उनको मिल जाता है, बट आई हैव सीन अ लॉट ऑफ देम ट्रांस फैट उनके खाने में ज़्यादा होता है. तो जो रेड मीट ईटर्स हैं या नॉन वेजिटेरियन ईटर्स हैं, उनको क्या कॉशियस रहना चाहिए? किस चीज़ से कॉशियस रहना चाहिए? So I'll tell you this. I had a webinar once and one of the attendees asked me this question कि मैं तंदूरी पोक खा सकता हूँ. I mean there was some name, I don't know because I'm not a non-vegetarian. तो मैंने बोला तंदूरी तो खाओ ही मत पहले. एंड दूसरा पोक है, बीफ है, मटन है, ये सब दे आर हाई ऑन सैचुरेटेड फैट. तो उसमें प्रोटीन है लेकिन उसमें फैट का कंटेंट इतना है. आपने अगर कभी नॉनवेज बनते हुए देखा है लाइक पोक एंड मटन एंड ऑल, उसमें खुद में इतना फैट होता है कि ऊपर से फैट डालने का जरूरत नहीं है. And all that is so much of saturated fat. And when you cook that at a higher temperature, when you do that trans fat barbecue, it gets converted into trans fats. So while it may be good for you because it gets charred, मतलब तंदूरी बनाने में, while grilling, it produces toxic end products which are carcinogenic at times. Carcinogenic मतलब? Cancer causing. Oh. Yes. So like I know that client said, मैम आप तो बोल रहे हो मैं नॉन वेज छोड़ दूँ. नहीं, I'm like नहीं, अंडा खाओ आप, चिकन खाओ, फिश खाओ, but ensure that you are eating free range eggs. Ensure that fish is like not loaded with mercury. मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग से भी like people do farming, fish farming, and you can procure fish from there. तो अगर मैं नॉन वेज हूँ तो मैं रेड मीट छोड़ ही दूँ पूरा? देखो, see people who are hardcore non-vegetarian ना, उनको रेड मीट सबसे ज्यादा पसंद है. So I would say छोड़ना है तो पहले कम करो. Okay, and आप क्या recommend करोगे उनको? Of course, I would say day 1 पे छोड़ दो, but which is difficult. तो quantity कम कर दो. So there's nothing good that comes out of red meat. Exactly. प्रोटीन आएगा, but साथ में trans fats भी आएंगे, साथ में inflammation भी आएगा. So one more thing I would want to highlight here. This is for non-vegetarians. No offense against anyone, but this was a study done for a cow shed, जहाँ पे like you know beef बनता है ना वहाँ पे, and when cows were slaughtered, their body releases some hormones. हाँ, documentary देखी मैंने. Shock, like which are present in that meat.
Yes. and because of which we call those food as tamsi ahar. तो आप Hmm. non-veg से again because of those hormones it's like inflammatory in nature. और chicken is fine. So Chicken and again, fish. chicken, same thing happens. Fish, again, same thing happens, but it is in lesser quantity as compared to larger cattle, bigger cattle. Buffalo है या cow है या and chicken का क्या है ना, like many a times they directly slaughter them in one go. Hmm. Cow तो they've seen it's a big shed and it's a machine through which they pass तो and इतना इम्पैक्ट होता है, वो इमोशन yeah, से तो जा रहे हैं, उनको yeah, मारा जा रहा है, देख yes. रहे हैं 10 मिनट 15 मिनट. It's not a good sight to see, to be honest. I'd seen that documentary. हाँ मैंने देखा है वो. तो हाँ, you can see them there growling, is crying. yeah, there's a literal fear and tears in their eyes. That's why non-vegetarian is tamsi, so it's going to impact your gut as well. Like though I don't believe in tamsi etc., but I have seen that it impacts their emotions big time. Plus it's difficult to digest. हाँ, makes sense. Like chicken fish like one go and you're done. तो Done. वो रिलीज नहीं होता है, इसलिए उनमें like क्या जो भी आपने बोला वो उतना नहीं होता है. उतना नहीं होता है, लेकिन होता तो है. एंड वेस्टर्न डाइट वर्सेस इंडियन डाइट अगर देखो, मैं यूरोप में था, वहाँ पे इंडियन खाना तो मिल जाता है, अब तो हर जगह वीगन और इंडियन खाना मिल जाता है, बट उनका मोर और लेस वही रहता है कि मतलब रेड मीट रहेगा या चिकन हैवी रहेगा, उसके साथ वो तला हुआ रहेगा, चिकन फ्राइड जो खाते हैं, वो बर्गर खाते हैं, बेकन खाते हैं. एक तो उनका खाना थोड़ा ब्लैंड रहता है, और ये हाई इन ऑल दीज सैचुरेटेड फैट्स, ट्रांस फैट, ऑयली फूड, सिंपल कार्ब्स, ये सब का मिक्स है. फिर वो इतने हेल्दी कैसे हैं? लाइक काफ़ी लोग उनमें हेल्दी होते हैं, उनको इतने इश्यूज क्यों नहीं दिखते हैं जो इंडिया में दिखते हैं? एंड डाइट्स में क्या फ़र्क है? लाइक हमारा इंडियन डाइट्स में इतना स्पाइस रहता है, स्पाइस से हमें इन्फ्लेमेशन होता है. व्हाट इज़ द कंपैरिजन? So let's start comparing a healthy food plate with an unhealthy food plate. अगर आयुष आप दाल चावल रोटी, like I said earlier also, India is carb rich country. तो हमारे macros ही meet नहीं हो रहे हैं. Forget micros. They are a protein rich country. आप देखो उनका meals are basically protein driven. उनके जो vegetables भी होते हैं वो stir fried होते हैं side में, right? Stir fries on the side. There may be mashed potato for carbs. There's no rice or roti etc. Bread रहेगा, okay, and there is some protein. It could be eggs, it could be bacon, it could be beef, pork, sausages etc. So since most of their macros are met, they are probably better. But let me tell you, US का जब study हुआ था ना, some health study was done. It was found that they are more prone to health related issues as compared to Indians. Because their body were not given that adequate macros. अभी सारे food groups होने चाहिए, carbs भी होना चाहिए, protein भी होना चाहिए, fat भी होना चाहिए, nuts and seeds भी होने चाहिए, water भी होना चाहिए, micronutrients भी होने चाहिए. तो wherever there will be a deficiency, you will see prevalence in diseases. Also, so I would say US, I mean Western diet compared to Indian diet, say we should look at the deficiencies that are there. Now tell me, how many fruits do you eat in a day? One. And how, I mean one to of course now I've given you, but वहाँ पे you see people eat fresh fruits, the berries and all. Do we get that here? No, we don't even get that here. Ours is all adulterated. Theirs is all clean. Like I know whenever I go to London, I like eating fruits there. I would tell my sister-in-law, okay, don't make breakfast for me, I would prefer fruits. But when I'm in India, I don't enjoy eating fruits. इंडिया का रेगुलेटरी सिस्टम थोड़ा ढीला लग रहा है मुझे, बहुत जो ढीला अलाउ कर रहे हैं सब होने का. Yes, and there is, like, see, we need to support farmers. Nobody is supporting farmers, so adulteration is coming from the grassroots level. They need that. वहाँ पे farmers will own you. यहाँ पे poor thing, farmers are committing suicide. Imagine the apathy which is there in both the country. I mean the comparison. So यहाँ पे we use DDT, which is a pesticide, जो वहाँ पे use नहीं होता है. वहाँ पे air is clean compared to here. So here I'm talking about London and Europe. Your US, New York is like high on pollution level, to be honest. तो जहाँ पे भी processed food ज़्यादा रहेगा, जहाँ पे भी population ज़्यादा रहेगा, वहाँ पे food adulteration रहेगा, and वहाँ पे it is going to impact your health. Okay. Secondly, talking about spices, now honestly, we had turmeric, we had chilies, we had like खड़ा मसाला जिसमें इलायची है, दालचीनी है, so all those will actually boost your immunity.
compared to them. Mm. They don't add turmeric in everything. Turmeric in smaller amount is anti-inflammatory in nature. एंड अपना लाइफस्टाइल ऐसा है कि इन्फ्लेमेशन हम लोग इनवाइट नहीं करते रहता ही है आ जाओ करके. सो इट्स बेटर टू इंक्लूड स्पाइसेस बट इन मॉडरेशन. व्हाट इज नॉट राइट इज दैट रेड कलर दैट इज एडेड. फिर मिर्चीज लाइक भूत जोलकिया विच आर यूज्ड लाइक घोस्ट पेपर एंड टू मच ऑफ स्पाइसी फूड. दैट इज अ चैलेंज. वो इन्फ्लेमेट ज़्यादा कर देता है. Yes, because excess of spices can impact your gut lining. It erodes your gut lining. Yes. और ऐसे जो लोग होते हैं, जैसे मेरी टीम में एक लड़की है, वो दिन भर पिज़्ज़ा मंगाती है, पास्ता खाती है, चिप्स विप्स खाती रहती है. एंड एक दिन मैं उसको पूछ रहा था कि तू क्या खा रही है, मतलब इट्स नॉट गुड फॉर यू. तो कहती है कि मेरे को देखो मैं कितनी पतली हूँ, मतलब मेरा मेटाबॉलिज्म अच्छा है. Right. एंड दैट्स व्हाट इज आंसर. Right. एंड ऐसे दोनों टाइप के मैंने देखे होते हैं, जो थोड़ा भी खाते हैं मोटे हो जाते हैं, और एक इस टाइप के लोग होते हैं जो कुछ भी Right. खाते रहते हैं और उनको लगता है. मेरा एक बचपन का दोस्त है, वो भी कुछ भी खाता था, पतला ही था, मोटा नहीं होता था. एंड अब मैं उससे मिला, वो मोटा हो गया है फाइनली आफ्टर 10 years. बट स्टिल ये इसका क्या फंडा है? So I'll tell you what. When I was studying, there was something called as thrifty genes, which is present in Marwadis. थ्रिफ्टी. Thrifty. तो आप कितना भी खा लो, आपका मेटाबॉलिज्म इतना अच्छा है कि आप डाइजेस्ट कर पाओगे एंड यू विल नॉट गेन वेट. लेकिन अगेन द आयरनी इज प्रोबेबली यू हैव गेन्ड विसरल फैट व्हिच यू डिडंट रियलाइज एट दैट पॉइंट. एंड विसरल फैट वो आपका ऑर्गन्स के अराउंड जो फैट होता है. राइट. तो आपको तब बिकॉज आप यंग हो आपको अभी पता नहीं चलेगा, बट एज यू एज लाइक यू सेड आपके फ्रेंड जैसे अभी नाउ आफ्टर 10 years ही इज गेन्ड वेट, ही इज एजिंग. सो अभी इवेंचुअली एक्सटर्नली भी दिख रहा है. So ऐसा नहीं है कि her metabolism is good. Agree, her metabolism is good. But again, end of the day, she is not loading her body with nutrients. It's just empty calories. So it's not helpful. And जैसे आपने बोला दूसरा client, दूसरा जो है team member, वो हवा भी सूंघ लेगी तो she'll gain weight. Her metabolism is sluggish. She actually needs to be more active compared to others. और मेटाबॉलिज्म क्या होता है, उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? So metabolism is like आप जो खाना खाते हो वो खाना डाइजेस्ट करना, एंड जो डाइजेस्ट खाना होता है उसको फिर मसल में, हॉर्मोन्स में, एंजाइम में, मतलब हमारे बॉडी के जो रिक्वायरमेंट्स है उसको कंप्लीट करना. सो दिस इज मेटाबॉलिज्म, लाइक बीटिंग योर हार्ट, regrowing your hairs, regrowing your mustache, beard, or healing. So all that together, like catabolism and anabolism, is your metabolism. Okay, that is controlled by your thyroid gland. Okay. Now, if you exercise, your metabolism gets boosted. If you eat right, your metabolism stays correct. But आप 1 घंटा exercise करके 23 घंटा couch पे हो, your metabolism will become sluggish. You don't take enough nutrients, your metabolism will go sluggish. तो मेटाबॉलिज्म मतलब वो absorption capability होता है, क्या होता है? सब like आपने खाना खाया तो वो खाना डाइजेस्ट करना, डाइजेशन के बाद जो न्यूट्रिएंट्स मिले उसको एब्जॉर्ब करके नई चीजें बनाना. So what is the sign of a good metabolism or a bad metabolism? So when you say good sign, so ideally we can calculate our basal metabolic rate. There are calculations also and there are machines also which will let us know about our BMR and RMR. Okay, but if you have good metabolism, you will not gain weight that quickly. Okay, and good metabolism ka another sign is your gut health is amazing. You will not feel heavy. Third sign is your heartbeat is amazing. I've also seen people with good metabolism having good like आप stress test कराते हो वो treadmill पे, your heart rate will not go at its peak for more, I mean it will take at least 15 to 20 minutes to go at peak. But people जिनका metabolism sluggish है वो जल्दी थक जाते हैं. तो वो जब stress test करते हैं तो उनको like their heart rate increases, goes to 180 200 within 2 to 3 minutes. What are the most common mistakes that I think Indian लोग में करते हैं? I'm sure मैं भी वही करता था. Like December जब से आप काम कर रहे हो मेरे साथ, and I think इसमें कितना हो गया, 5 months हो गए हैं. 6 months, yeah. 6 months हो गए हैं. एक मुझे प्रॉब्लम होती थी कि मुझे दोपहर को नींद आती थी या मैं कम वीक फील करता था. That has improved. एक सुबह की एनर्जी वाला फील होता था, लोअर एनर्जी होता था. एक तो मैंने ब्लोटिंग वाला बताया कि मैं पनीर खाऊंगा तो मुझे ब्लोटीनेस फील होता था. एक होता था कि आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम वर्क मुझे रात को थोड़ी एनर्जी कम लगती थी. एंड वो ऐसा नहीं कि मतलब वो नॉर्मल वाली एनर्जी कम लगती थी, सच में ऐसा लगता था कि अब तो कुछ नहीं कर सकते. एक हो गया स्पोर्ट्स रिलेटेड, लाइक अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं हो रही है, बहुत जल्दी वीकनेस आ रही है, थकान हो जा रही है. ये 5 things. Constipation था. Constipation was a big effect. I think मुझे तो अभी भी लगता है issue है. And then 7th is a sleep issue, which still trying to figure it out. But ये 7 जो गलतियाँ मैंने करी थी और आपने जो चेंज किया, एक बार वो बता दो आपने क्या चेंज किया, एंड बाकी भी क्या वो कर सकते हैं कॉमन
तो पहले हमने ना आपके इसमें यू वर हैविंग द सेम फूड ऑन अ डेली बेसिस, तो वो हमने हटा दिया. लाइक आई नो योर स्टैंडर्ड ब्रेकफास्ट वाज एवोकाडो टोस्ट एंड एग्स. हाँ काफी दिन से नहीं खाया मैंने वो. हाँ, हाँ. तो वो हमने हटा दिया एंड वी स्टार्टेड इंक्लूडिंग वैरायटी ऑफ फूड. हाँ सेकंड, योर वाटर इनटेक वाज कॉम्प्रोमाइज्ड, करेक्ट. जो हमने बढ़ा दिया. हाँ Third thing is, like in your case, you had constipation and migraine also at times, हाँ right? हाँ हाँ. So we worked on your gut and we corrected the nutritional deficiency. जैसे आपको vitamin D दिया था, B complex दिया था, and we had added few functional foods here and there, like not few, a lot to be honest, to help you heal your gut and also to improve your stamina. जैसे हमने L-carnitine डाल दिया था, करेक्ट. Biococutin डाल दिया था. We ensured you had pre-workout and post-workout, which I guess was missing earlier. आप प्रोटीन तो ले लेते थे लेकिन प्री वर्कआउट नहीं. एल कार्निटिन नहीं लेता था. L-carnitine वही नहीं ऐड लेते. किया मैंने. हाँ, फिर प्रोटीन आप प्री वर्कआउट नहीं लेते थे. लाइक यू नो वी एडेड अ फ्रूट और अ डे. यस बनाना, yeah. अंजीर का पानी और सम ड्राई फ्रूट्स. Yeah, dry fruits. So which was not there as a part of your meal. Plus we added fiber to your breakfast, lunch, dinner options, because of which you started feeling less sluggish. Of course, there are challenges at times that we face now because आप travel से आते हो तब थोड़ा सा disrupt हो जाता है, and then again you take time to get into tempo. One more challenge with you was, do you work? I mean, you went for badminton. You did not go for workouts that like it did not motivate you. So of course we had to work on that emotional aspect as well, like you know, to motivate you, like just letting you know that this is also equal priority, and probably it was you. I have your before ke pics and I see you now. Okay, I see your skin is glowing, and if you want to flex you can show your muscle as well. Let's go, it's improved guys. So this is the improvement, and of course gut अब health. मुझे जिम में मजा आ रहा है. मैं like I look forward to going to the gym. थोड़ा थोड़ा. एंड इसमें से सबसे कॉमन मिस्टेक्स मैंने क्या करी थी जो आपको पता है दूसरे भी करते हैं? तो आप पानी नहीं लेते थे. पानी नहीं लेते थे. दूसरा, आई रिमेम्बर मैं बोलती थी सैलेड खाओ, Salad बोल नहीं भर खाता था. सैलेड था, लेकिन यू नेवर लाइक्ड एनीथिंग बिकॉज ऑफ कोर्स उसमें कैप्सिकम वगैरह सब कच्चा कच्चा था, तो इट वाज नॉट प्लीजिंग टू टेस्ट. तो सैलेड नहीं लेते थे आप. हाँ. दूसरा, आपका जो ईटिंग पैटर्न था ना, गैप बिटवीन टू मील्स वाज अ लॉट मेनी अ टाइम्स. आपकी मीटिंग्स है, आप चले गए, सुबह पानी पिया था, फिर शाम को 4 बजे यू आर हैविंग योर लंच, व्हिच इज लाइक समथिंग फ्रॉम स्विगी जोमेटो अगेन. सो पानी पी लो दोस्तों. So these were major mistakes, and there were times when you woke up, you wanted to exercise, but then you again went off to sleep. This has happened many a time. This has happened a lot. Now it has suddenly improved. Yeah. So Now that I think of it. thanks to our trainer. Yeah. So these were the major. And one more thing was, you had started sleeping well in between. हाँ बीच में agree. हाँ, again after your Europe trip, I was expecting कि थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा, but I'm sure we'll be back on track. Got it. नहीं, आई थिंक इफ दिस सिर्फ एक ही टेक अवे अगर फूड के बारे में लेना है आपको, अपनी फूड हैबिट या अपनी गट हेल्थ व्हाटएवर अगर आपको इम्प्रूव करनी है, सैलेड, गाजर, कुकुम्बर और थोड़ा अनियन ये ऐड कर दो. उसकी वजह से इतना उसका इफेक्ट होता है. एक तो अगेन भूख कम लगती है, तो आप कचरा कब खाते हो. मैं यहाँ भी यूरोप जहाँ भी मैंने कुछ भी खाया, उसके पहले अगर मैं पनीर रोटी भी खा रहा हूँ या चिकन भी खा रहा हूँ, कुछ भी खा रहा हूँ, मैं बोलता था यार एक ग्रीन सैलेड का एक प्लेट ला दो. And some people are like, what's green salad, bro? And I'm like, just get me some carrots and like cucumbers. That's it. वो खाता था. And I think वो छोटी सी चेंज की वजह से मेरा ट्रिप बहुत ही अच्छा गया. Like वापस आके मुझे इतना चेंज नहीं करना पड़ा. Now talking about sexual health, can a diet in high processed food, sugar negatively impact your sexual health, and क्या exactly impact करता है? जो भी बाहर के खाना हमने वो बात कर लिया, उसका impact क्या होता है on your sexual health? So I have seen this. There are two impacts. One is difficulty in getting erectile dysfunction. Okay, and I've seen in adults as young as 25 and 30. I have seen erectile dysfunction because when you eat more of processed food, your blood sugar levels are instantly high, which impacts your testosterone, which can lead to erectile dysfunction. So erection is all about basically blood flowing into blood flows, and when the blood flows you get a erection. Correct. Now blood sugar levels इसका खाने से क्या लेना देना है? ब्लड शुगर लेवल्स और सीरम इंसुलिन, आप जब खाना खाते हो आपकी बॉडी में ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, क्योंकि इंसुलिन ग्लूकोज को डाइजेस्ट करता है. करेक्ट, बैलेंस करने के लिए. हाँ. नाउ जितना एक्सेस ग्लूकोज होगा उतना टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को इम्पैक्ट होगा. जितना ज्यादा ग्लूकोज टेस्टोस्टेरोन को इम्पैक्ट होगा. टेस्टोस्टेरोन क्या करता है हमारे लिए? मेल सेक्स हार्मोन. मेल सेक्स हार्मोन व्हिच इज वेरी मच नीडेड फॉर इरेक्शन. Okay. Apart from secondary sexual characters, apart from the
development of male gonads, for sperm, etc. Like आपकी body sperm produce करती है, right? For that also you need testosterone. So excess of sugar is going to impact that. Second, Ayush, it's not only about sugar, it's also about lifestyle. I have seen this again, that our lifestyle has become so active. Basically, people who are working in corporate world, I have seen that they suffer from premature ejaculation, or they suffer from erectile dysfunction. Erectile dysfunction कम ही है, premature ejaculation ज़्यादा होता है, mostly because of the stress. And आप जितना stress रहोगे, आपकी body cortisol release करेगी, stress hormone. And cortisol is going to impact or lead to increase in blood sugar. This is a characteristic of cortisol. और जितना आपकी बॉडी में ब्लड में शुगर ज्यादा रहेगा, उतना सीरम इंसुलिन रहेगा. सीरम क्या है? सीरम इंसुलिन रहेगा, एंड इंसुलिन विल इम्पैक्ट योर टेस्टोस्टेरोन. नाउ इट वर्क्स कंप्लीटली, उसकी वजह से मसल बिल्डिंग भी स्लो हो जाती है. एग्जैक्टली, because testosterone plays a crucial role in muscle development. That's why men are more bulkier than females. Correct. Because testosterone helps in. And how does it impact a girl? गर्ल में उल्टा है. सो ज्यादा ग्लूकोज खाया आपने, तो ज्यादा इंसुलिन बना. ओके, तो आइडियली इन फीमेल्स एस्ट्राडियोल जो फीमेल हार्मोन है, जो आपने, हाँ, एस्ट्रोजन जो आपने भी होता है, वो एस्ट्रोजन जितना भी एक्सेस टेस्टोस्टेरोन है ना, वो एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है आइडियली इन फीमेल्स. लेकिन जब आप ज्यादा शुगर खाते हो फीमेल्स, तो दैट कन्वर्जन इज इम्पैक्टेड. तो हमारी बॉडी में एस्ट्रोजन कम हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है, resulting into hirsutism, hormonal imbalance, PCOD, etc., etc. These are like one type of case. Another is when you are constantly stressed. Okay, your body gets depleted. I mean, again cortisol release होगा. तो after a point cortisol भी release करना, मतलब हमारी body एक limit तक produce कर सकती है. उसके बाद, so you need cortisol. It will start using other hormones for production of cortisol. तो वो दूसरे हार्मोन की कमी हो जाती है फीमेल्स में, leading to estrogen dominance, period related issues, or issues related to conceiving, etc. Like, wow, I have seen this like anything. I mean, I have cases where I have cried after listening to clients' stories. It's like that. So stress is a major impactor here. And how does this impact libido? Libido is the which improves or like you keeps have that your sexual urge at a right place. It impacts completely when you see, when you're tired, you do not have libido to have that sexual urge. Yes. Also in males, this is a fact, that their testosterone levels are at peak in the morning. Whereas in females, they have that urge generally in the evening, because they are done with all the work. Now they are relaxed. Okay. So if you are a male and if you want to check your libido, check whether you are getting that erection in the morning. Yes. If morning mood is what it's called. Yeah. So then if it is, then your libido is better. But if you are stressed, your libido will get impacted no matter what. How is it impacting your health? Or like, is it like a lethal thing, or is it just like something you have to work on because it's a part of your life? So, okay, sex and intimacy is very much needed, because when you feel loved, you feel important, you feel worthy. And when you feel worthy, you are able to like you are somebody who have had sex. Okay, they are very happy the next day because their body releases oxytocin, their body releases dopamine, and you feel good. Got it. Right? Which is something that is like deprived. So if you see a mom who's feeding her child, she'll be very happy. Why do we hug each other? We feel good. We oxytocin gets released. Good, the spurt is because of that. Yeah. Apart from that, it impacts your immunity at end of the day. Immunity? Yes. So excess of testosterone in females is going to impact the estrogen and progesterone. So see, ये जो सारे भी सेक्सुअल हार्मोन्स हैं, उनका काम सिर्फ मसल डेवलपमेंट या सेक्स या लिबिडो नहीं है, उनके अलग काम भी होते हैं, जैसे हार्ट बीट करना, एंड देयर आर मेनी अदर थिंग्स, एड्रेनल फंक्शन. लाइक इन फीमेल्स, इफ आई टॉक अबाउट एस्ट्राडियोल, इट इज नीडेड, एस्ट्रोजन इज नीडेड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एग. आपके लिए टेस्टोस्टेरोन इज नीडेड फॉर गुड स्पर्म क्वालिटी एज वेल. So if your sperm quality is not good, even if you're ejaculating, you will have difficulty in having a healthy child.
एंड अल्कोहल का क्या इम्पैक्ट होता है ऑन दिस? Alcohol, I'm not a fan of. Hmm. Not at all. Like Yeah. I would never recommend Yeah. because alcohol again is empty calories. आप एक ml of alcohol will give you 7 kilocalories. तो आप एक ml तो पियोगे नहीं. आप now understand you will have like say if you're having beer, it would be in 500 ml or so. Do the math. It's going to impact your liver, and it also leads to hormonal imbalance. Because it's again empty calories. So the same logic gets implied. प्लस जो हमारी बॉडी के हॉर्मोन्स होते हैं ना, उनको भी आफ्टर अ पॉइंट मतलब दे ऑल्सो गेट मेटाबोलाइज्ड, या उनको भी ब्रेक डाउन और उनको भी निकालना पड़ता है. तो वो निकालता लिवर है. लेकिन लिवर लोडेड है बिकॉज यू हैव ड्रैंक अल्कोहल. तो पहले वो अल्कोहल को हटाएगा. हमने कॉफी पिया है उसको भी हटाना है. फिर आपने जो कचरा खाया है उसको भी हटाना है. सो इट्स लाइक योर पुअर थिंग लिवर. इट्स बॉम्बार्डेड विथ एवरीथिंग. One of the reasons why we have cases of fatty liver now for people who are non-alcoholic as well. Correct. Because of excess of fat consumption, because of lifestyle and other बैड दिन लीवर थक रहा है. अल्कोहल इज लाइक बूस्टर ऑफ लीवर थकना हो जाता है. Yeah. बट वो अलग तरीके से भी थक सकते हो. तो आप उसको थका रहे हो एट द एंड ऑफ द डे. Exactly. And pollution also impacts your liver. कैसे? Because जो हम when we inhale air, जो ड्रग्स केमिकल्स है वो आपकी बॉडी में जा रहे हैं. एक्सेप्ट लिवर, nobody is well equipped to remove those from your system. And a parallel to that is a meditation, right? वो क्या है? Talking about meditation first. When you meditate, you are in a state of mind wherein your body is either releasing alpha waves, beta waves, theta waves. Alpha waves is like your subconscious. Beta waves is like when you are sleeping, and theta waves are deep sleep. Entire healing happens then. So basically from fight and flight mode, I have put your body into rest and digest. And when your body is in rest and digest, you will not only have clarity when it comes to thoughts and what you want to do, but it calms down your digestive system. It impacts your gut bacteria. There is better absorption of nutrients. When you are in fight and flight, your body is slowly releasing cortisol because it considers that as a stressor. Correct. But when you are in this like calm mode, your body releases hormones which will make you feel good. That is why meditative state is really good. अब हमने पूरा काफ़ी चीज़ समझ ली. वी अंडरस्टैंड न्यूट्रिशन, किस टाइप का खाना खाना चाहिए, किस टाइप का खाना नहीं खाना चाहिए, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, रेस्टोरेंट, प्रोसेस्ड फूड, गट हेल्थ, इमोशंस वाइल ईटिंग. अब किसी को ये पता होने के लिए भी टेस्ट की जरूरत है, ब्लड टेस्ट की जरूरत होती है. Correct. तो किस टाइप का ब्लड टेस्ट आज जो भी देख रहा है उसको इमीडिएटली कराना चाहिए एंड देन सॉल्व करना चाहिए. बट व्हाट द काइंड ऑफ टेस्ट दैट एवरीबॉडी शुड डू? बिकॉज मुझे याद है बचपन से हम लोग ब्लड टेस्ट कुछ ही ऑपरेशन के पहले करेंगे या कुछ तबीयत खराब है तब करेंगे, या साल में एक बार, 2 साल में एक बार कर लेंगे, जिस एज अ सेक ऑफ इट करते थे. अब मुझे लगता है ब्लड टेस्ट हम काफी रेगुलरली करते हैं. आई थिंक वी डू एवरी क्वार्टर टू चेक की इम्प्रूवमेंट्स हो रही है कि नहीं हो रही है. In your case we do quarterly, otherwise 6 महीना a year is good to go. तो क्या करना चाहिए, क्या सजेशन है फॉर इवैल्यूएशन पर्सपेक्टिव? So see, first and foremost, none of us should miss out is vitamin D3. Because हमारा लाइफस्टाइल ऐसा कि वी आर नॉट एक्सपोज टू सन फॉर 45 मिनट्स विद बेयर मिनिमम क्लोथ्स विदाउट सन ब्लॉक एक्सेट्रा. हमारा बॉडी विटामिन D3 बनाता ही नहीं है. सो विटामिन D3, vitamin B12, it will give you it will give you an idea about your gut health. CBC, because CBC में हीमोग्लोबिन होता है, RBCs, WBCs वगैरह, तो बताएगा कि आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन है. इज योर इम्यूनिटी गुड? इज देयर एनी how is your overall blood parameters? CBC, ESR is something. Lipid profile, I always tell all my clients, lipid profile पूरा, so total cholesterol, triglycerides, LDL, HDL, it will give us an idea on good fats कितना है, bad fat कितना है, हम कितना carbs खा रहे हैं, कितना fat intake है. So CBC, ESR, vitamin D3, vitamin B12, total cholesterol or lipid profile for that matter, and then blood sugar. So HbA1c सबने कराना चाहिए. HbA1c, it gives you an idea of your 3 months blood sugar. Okay. इसके अलावा I recommend test case to case basis पे. Like कभी-कभी मैं renal profile, like kidney profile, I would want, like अगर हम लोग करा रहे हैं once a year, तो फिर सारा ही profile करा लो. Like kidney profile करा लो, liver profile करा लो, thyroid profile करा लो. लेकिन if a woman comes to me saying that she has period issues,
then I may want to get hormonal test done. If you come to me saying that मेरे को ना pain जलन हो रहा है, like the symptoms that you described, I would say CRP करा लो. कभी कभी 50-year-old आता है जो जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई होता है, तो मुझे होमोसिस्टीन भी ऐड करना है just to check how good is his heart health. So rest reports can vary, लेकिन इतना बेसिक तो हम सबको ही कराना चाहिए. वेट मत करो, ब्लड टेस्ट करवाओ, गो टू न्यूट्रिशनिस्ट, गो टू डॉक्टर एंड चेक करो कि आपका सब सही है कि नहीं है. प्रॉब्लम आने का वेट क्यों करना है, उसके पहले ही इंडिकेटर्स देख के उसको सॉल्व कर दो. Correct. That's the motive of this. That's the idea. And you should at least get blood test done 6 months to a year. Every year ensure to get complete body checkup done. Correct. And सप्लीमेंट्स एक ऐसी चीज़ है जो मैं जब से बड़ा होता आ रहा हूँ, मुझे मना किया जा रहा है कि वे प्रोटीन मत लो, सप्लीमेंट्स मत लो, ये सब नहीं लेना चाहिए, खाने से आ जाता है वगैरह वगैरह. एंड ऑफ कोर्स आपसे बात करके मुझे पता लगा कि ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो हमें लेनी चाहिए. जैसे D3 एवरी 15 to 20 days आई टेक इट. कुछ अगेन आपने उसका रीजनिंग दी है. प्रोबायोटिक्स में लेता हूँ दिन में एक बार. ऐसे अलग अलग चीज़ें. जब मैं यूरोप ट्रिप गया था, आपने मुझे कम से कम 5-6 सप्लीमेंट्स अलग अलग टाइप के दिए थे. एक बेकोसूल टैबलेट दिया था बिफोर ब्रेकफास्ट फॉर मिनरल्स, एक आपने अमीनोफिट दिया था, ओमेगा 3 दिया था. ऑल ऑफ दिस बिकॉज जब आप ट्रैवल कर रहे हो, आपकी मिनरल्स और आपके न्यूट्रिएंट्स अच्छे से नहीं मिल रहे हैं बिकॉज ऑफ द स्लीप आपकी अलग हो गई है, फूड में नहीं मिल रहा है. सो उसकी वजह से अगेन आई थिंक कि मेरी एनर्जी लेवल्स आर कॉन्स्टेंटली गुड एंड आई वाज 80% आई वाज फॉलोइंग इट. सो एज सून एज आई केम बैक टू इंडिया, ट्रांजिशन हुआ, मैंने दवाएं छोड़ दी, वो एकदम एक स्मूथ फ्लो की तरह आया था. तो एक तो सप्लीमेंट्स लेना चाहिए. एक बार आप भी बता दो, मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, बट किस टाइप के लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए, वो मिथ क्या है, जस्ट बस्ट इट फॉर अस. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सप्लीमेंट्स जब पहले के ज़माने में सप्लीमेंट्स का मतलब था विटामिन सी, कैल्शियम वगैरह, जो जिम वाले लोग होते हैं वही लेते हैं. करेक्ट. For me, I would want to call those supplements as nutraceuticals, something that will supplement your food to heal your energy or to boost your healing journey. Okay, now supplements सबको सब नहीं लेने चाहिए, टू बी ऑनेस्ट. सप्लीमेंट्स शुड बी टेलर मेड, स्पेसिफिकली बेसिस योर ब्लड रिपोर्ट्स, योर कंडीशन एंड योर गोल. ओके, लाइक सप्लीमेंट्स बोलने जाए तो बहुत सारे हैं, कैल्शियम से लेके वी गेट आइसोफ्लेविनॉन्स, वी गेट फ्लेविनॉइड्स एज सप्लीमेंट. There are supplements like Tadka which are there only for your liver health. There are supplements like Bopurin which will help you in controlling sugar. There are fat cutter supplements, but not everyone should take everything. Magnesium है, magnesium में भी अलग अलग तरीके के हैं. Citrate है, glycinate है, taurine है, सब अलग अलग है. जी. But we don't need it. Copy paste मत करो supplements. दूसरा कोई ले रहा है तो उसका मतलब ये नहीं आप ले लोगे. Correct. Right. I gave you omega 3. Why? Because omega 3 आप जब बाहर का खाना खाते हो which is like predominantly rich in omega 6, तो इतना ज़्यादा omega 6 है कि आपको omega 3 बैलेंस करना पड़ेगा, नहीं तो it's going to impact your heart and gut. तो तभी इसलिए मैंने omega 3 दे दिया था. बाहर का खाना is like sunflower oil and all that which is high on omega 6. तो omega 3 उसको बैलेंस करने के लिए, इम्यूनिटी के लिए. अभी आप आ गए तो we stopped it. Correct. Right. Probiotic, again a supplement which I would say everyone should take for 3 months and then stop it. Like at my house, I always have 2 sets of probiotic, which we take it SOS, as and when needed. Like आज if I go out for dinner, probably I would want to take it at night, or probably मैं सुबह भी ले सकती हूँ. आज सुबह, आज रात को, and कल, and then I don't need it. I mean, prefer healthy alternatives to supplements as well. जैसे विटामिन D है तो सन एक्सपोजर कर लो तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो होगा नहीं, इसलिए ज़रूरत है. अमीनोफिट मैंने इसलिए दिया था टू मीट अप विथ योर प्रोटीन रिक्वायरमेंट बेसिकली, जो हमको शायद considering that you are not that hardcore non-vegetarian, so I wanted to meet up with your protein, so I gave you amino acids like that. But I think मैंने प्रोटीन काफी खाया वहाँ पे. हाँ, अच्छा खाया and I was happy. But it's showing, it's impacted on your skin. हाँ. Yes. Good to know. Can you mention 3 common habits that you have seen जो top 1% होते हैं या top 2% होते हैं वो करते हैं जो rest of the 98 नहीं करते हैं? Good habits. Yes. Regular workout. Sleeping on time. And be regular with like discipline and consistency जो होता है ना, वो like even when they eat outside, I have seen that they are ensuring that they are getting their macros and micros. Correct. 5 snacks, healthy and tasty, which you can have.
First, my favorite snack that I would want to say, which is healthy, tasty, and sweet as well, is gud makhana. Gud makhana. Yeah, I prepare that at home. Hmm. Good on fats, Hmm. and good matlab it's that desi good, so high on iron as well, Got it. and it pleases my taste, but I don't need the desserts. ठीक है. Second again, this is something that I enjoy and I have seen is amazingly healthy, is paneer broccoli tikki. घर का बना पनीर. Hmm. Okay, and when you grate it with broccoli, it actually gives you a taste of cheese, cottage cheese, Nice. like ricotta cheese jaisa. Got it. Low on fiber. Low on sodium, high on fiber. Good for your liver health, good for your gut, and you are getting protein. और आप थोड़ा सा घी डाल के उसको रोस्ट करो and it's amazing. ठीक है. Third. Third that I enjoy, or probably you might also enjoy, is sattu laddu. Sattu laddu. Yeah, it's good fats, good fiber, good protein, and like good nuts and seeds. So बोलता रहा जो बनाने के लिए काफी टाइम से नहीं बनाया मैंने. so that Got it. Fourth and fifth. then dosas and idlis, if homemade, they are healthiest snack. You couple it with sambar, you couple it with chutney, and like add vegetables. I love of it. your- Yeah. I same. know. मेरे को बहुत पसंद है. Even sukha bel for that matter. Fifth. आप सेव मत डालो हाँ. and it's healthy. हाँ. ऐसे Eh, सूखा पे. या सो उसमें भी आप सत्तू का चटनी डाल बना लो, उसमें वेजिटेबल्स डाल दो, मुरमुरा है विच इज लाइक मखाना डाल दो. मखाना डाल दो, नट्स डालो, पीनट्स डालो, एंड यू आर सॉर्टेड. So I Got it. can go on for snacks because I'm a foodie, to be honest. But Yeah. any food you tell me, we can make it healthy. पिज्जा को कैसे हेल्दी बनाओगे आप? So firstly, instead of maida, I will use whole wheat. Hmm. Okay, and instead of using yeast, I will use sourdough bread. तो मेरा बेस तो पूरा हेल्दी हो गया. Okay, उसके बाद instead of using that processed cheese, I may want to use cashew and cauliflower ka paste, which will give me that cheese ka taste. I Yes. can make it I generally make it at home. Cashew, cauliflower and nutritional yeast डाल के, तो it has a good taste of ये भी cheese. राजू को बोलूंगा मैं. And then and फिर तो सब्जियां हैं. सब्जियां बहुत सारी, हाँ. oregano, mixed herbs, again healthy. And I also make homemade cheese. वो जो पनीर होता है ना, हाँ. वो थोड़ा सा रिकोटा टाइप बना के, हाँ. तो it's like मुझे you भूख don't लग रही है need अब. I make brownies also at home, which are like jaggery में, हाँ. without any baking powder, baking soda. So, सच में मुंह में पानी आ रहा है सुन सुन. so okay, brownie के लिए let me give you this healthy treats. I mean, between us, Yeah. Healthy Treats is a very good brand. Healthy You can order from them. Good Yeah. brownies. Done. 3 important food for our gut health which everybody should Fiber, have. onions. Hmm. Okay. And then second is probiotic. Hmm. When I say probiotic, I would want kefir, kombucha, rice kanji, Buttermilk. buttermilk, and fermented salsa and all that. Hmm. And second is avoid sugar. Avoid sugar. Yes, God. And brain health के लिए 3 superfoods that everybody should have. or many I have, but okay, 3. One is almonds, walnuts. Hmm. I'm a fan of that. Hmm. Another that I would want to include is good fat coming from ghee, Hmm. coming from coconut oil. Hmm. And I would say include good quality carbs, Hmm. whole grains, Hmm. because glycogen is needed by your brain for normal functioning. Got So it. if you don't eat carbs, that is also not right. So now we're getting into a myths and facts segment. Okay, number 1, skipping meals will help you lose weight quicker. Myth. Myth. Okay. Fruit juice are healthy for you. Myth. ये तो हमने डिस्कस किया. Eating late at night causes weight gain. Agree. Gluten is bad for your health. 99%, 50. Okay, let's say 60% yes, 40% no. Excess protein causes cancer. Absolutely not. But also it depends on the type of protein. Like I mentioned, आप mutton, pork, beef खा रहे हो, which is high on saturated, then it can. If your genes don't support, you cannot become muscular. 50-50? Okay. Vegans live longer than meat eaters. Not always. Spicy diet is bad for you. Not always again. Eating fats make you fat. No. ये तो myth है, हमने बात Myth है. करी ली. Carbs are bad for you. No. Just mentioned. Depends on the type of carbs. You need to drink at least 8 glasses of water in a day. It's less. You need to drink more. Okay. Organic foods are always healthy. Not always. Dark chocolate is healthy. Very healthy. Yeah? Yeah. But it has to be 80 to 90% dark chocolate. And not 10% dark chocolate and less sugar. People should avoid egg yolks.
I don't quite believe in, but one egg yolk is okay with. All calories are equal. Nah, fats are more calories compared to carbs and proteins. Okay, all right. Thank you so much हिमालय का एंड रिजल्ट वही है. ये किसी ने पॉडकास्ट देख लिया तो उसको एंड टू एंड काफ़ी चीज़ समझ में आ जाएगी कि उसको खाना क्या, किस टाइप का खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ऑल्टरनेटिव्स क्या है, वो क्या गलत कर रहे हैं, बेटर हैबिट्स एंड ऑल दैट. Right. आपका इंस्टाग्राम लिंक यहाँ पे मैंने डाल दिया है, सो दे कैन फॉलो यू, दे कैन रीच आउट टू यू एट एनी टाइम. Lovely. Thank you. एंड थैंक यू सो मच. एनी पासिंग आउट थॉट्स इफ यू हैव? Yeah. So one message that I would want to give all of you all is that go with the flow. इतना सोचना कि ये खाना ये नहीं खाना should not be right, but at the same time you should be mindful of what you put into your system. So it's thought wise also and food wise also. If you're mindful on that and you have control over your life, you will not suffer from, or you can prolong any disease for that matter. Yeah. So just stay happy and sleep on time. Very important. Yeah, me too. Alright, thank you. Thank you guys. Thank you. Alright guys, उम्मीद है आपको आज बहुत सारा न्यूट्रिशन और फूड के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा और आज अपनी मम्मी को आप बताओगे मम्मी ऐसे खाना मत बनाओ, ऐसे बनाओ. एंड आई होप इस इन्फॉर्मेशन को आप अप्लाई करो और मेरी तरह बेहतर फील करो. आपकी भी स्किन ग्लो कर रही हो, आपकी मसल मास बढ़ रहे हो एंड आपके सारे ब्लड पैरामीटर्स सही रिपोर्ट दे रहे हो. एंड ताकि और लोग सिमिलर फ़ायदा उठा पाएँ, प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो. और अगली वीडियो आप किस पे चाहते हो, किस बिजनेस टॉपिक पे चाहते हो, किस हेल्थ टॉपिक पे चाहते हो, किस स्पोर्ट्स टॉपिक पे चाहते हो, वो कुछ भी हो सकता है. प्लीज़ उसको कमेंट करो एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गेट द राइट काइंड ऑफ गेस्ट, राइट काइंड ऑफ एक्सपर्ट विच कैन हेल्प यू.